topic of mode of prevention in This Unani. call is now being recorded. I'm going to discuss this topic in four parts for better understanding. In first part, I will be presenting about prevention in modern concept, and in second part, views of Atibba about Hifzane Sehat, and in third part, method of prevention in different book, which has been described in different books. And last part, we will be discussing about tadabir. What are the different tadabir in different situation? What we should adopt for better prevention of the health. There are two well-known phrases about prevention. That is, the first one is "an apple a day keeps the doctor away." It is a very basic layman language which is used to teach children or a layman people or a common people to describe the importance of prevention of health. And other one which we frequently use is "prevention is better than cure." It is given by Desiderius Erasmus, and it is very effective and very short and effective sentence or phrase which is used as a importance of prevention. In Unani, there is a similar phrase like this: prevention is better than cure. The Atibba has described that the order or rank of benefit of Hifzane Sehat is above than the treatment of disease. Because treatment of disease, जब disease start हो जाती है उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, अपने जगह से हट जाती हैं. इसलिए हम अगर डिजीज स्टार्ट होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसका दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है ट्रीटमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो. इसका मेडिसिन का एक टर्म है, मेडिसिन में ही आता है प्रिवेंशन टर्म, लेकिन मेडिसिन के वो गोल्स जो कि इसके अंदर आते हैं: टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिजर्व हेल्थ और रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड. ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं, दिस ऑल टॉपिक्स कम्स अंडर प्रिवेंशन. And when we call successful prevention is depend on knowledge of cause, where dynamics of transmission of disease, identification of risk factors, and prophylactic measures. What we should do, prophylactic treatment, what we should give them, and what are the treatment measures we are giving the patient. These all constitute a successful prevention. अगर हमें किसी चीज़ की इस बीच में किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो हम उसका प्रिवेंशन सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं. जैसे if we don't know the mode of transmission of a disease, then we can't prevent it successfully. इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं एक सक्सेसफुल प्रिवेंशन के लिए, कि उस डिजीज़ का कॉज, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है. मॉडर्न उसमें मेडिसिन में जाए तो सबसे पहले ये टर्म जो पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, सबसे पहले आया था. इससे पहले जो है ये टर्म नहीं यूज होके, बल्कि ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंशन टॉपिक्स हैं, इट ऑल कम्स अंडर हाइजीन ऑफ जनरल मेडिसिन. एंड द पीएसएम वर्ड इज itself given in mid 20th century, and after that it is replaced by community medicine, which broadly comprise all the basic factors of prevention, the like health promotion, disease prevention, health restoration and rehabilitation. It all comes under a simple same topic, community medicine. And ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, ये सारी चीज़ें जब कम्युनिटी तक पहुंचती है, इन सारी चीज़ों को मिला के, कम्युनिटी तक पहुंचने तक के मिला के हम इसको कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं. ये नहीं कि सारी चीज़ें हम बना दें लेकिन कम्युनिटी तक पहुँचे नहीं. ये सारी चीज़ें कम्युनिटी तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी होता है. अब वो कम्युनिटी चाहे विलेज हो, ब्लॉक्स हो या पर्टिकुलर एरिया हो. पीएसएम 3 वर्ड जिसके अंदर बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं: पीएसएम, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ. इन तीनों में जो है कुछ डिफरेंस हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल्स जो होते हैं वो तीनों के सेम होते हैं. वो क्या होता है कि हम हेल्थ है तो हेल्थ को प्रमोट करें, कि एजुकेशन दे के हेल्थ को प्रमोट करें, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही हम कुछ तदाबीर इस्तेमाल करें, और अगर डिजीज़ हो गई है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसकी सफरिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें अल्टीमेट गोल्स हैं तीनों को मिला के. इसमें भी जब हम पीएसएम की पर्टिकुलर बात करें तो पीएसएम जो है वो प्रिंसिपल्स को जनरेट करती है, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाती है, और इसी चीज़ को अप्लाई करने का काम पब्लिक हेल्थ का होता है. पब्लिक हेल्थ जो है वो अप्रोच करती है उसको अप्लाई कैसे किया जाए. और कम्युनिटी हेल्थ का है कि वो कम्युनिटी तक लेकर जाती है. इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि किसी भी एक प्रिंसिपल को कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है, जिसके अंदर टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ हेल्ड फॉर हेल्थ सर्विसेज. ये सारी चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ में फिर आ जाती हैं. तो ये तीनों बेसिकली कुछ डिफरेंट हैं इन तीनों में, लेकिन अल्टीमेट गोल्स जो हैं वो तीनों का ऑलमोस्ट सेम होता है.
प्रिवेंशन की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट में इसके 3 प्रिवेंशन, बेसिक 3 प्रिवेंशन ही बताए जाते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। लेकिन इसके अलावा भी एक न्यू टर्म ऐड किया जाता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन के भी पहले आता है। हम इन तीनों स्टेज, कोई भी डिजीज स्टार्ट होती है, व्हेन अ डिजीज स्टार्ट देयर इज अ कंप्लीट एक साइकिल चलती है पूरे डिजीज के बीच में, इनिशियली स्टेज से लेके, इनिशियली स्टेज से पहले से, फिर उसके बाद डिजीज स्टार्ट होती है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, सम सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं, उसके बाद फिर एक पूरा डिजीज का कोर्स होता है, उसके बाद जब डिजीज खत्म हो जाती है तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं पे भी इंटरवेंशन करके किसी भी चीज़ से प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे किसी डिजीज के शुरू होने से पहले हम जो प्रिवेंशन करते हैं वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाती है, और डिजीज के बीच में अगर हम इंटरवेंशन कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। और डिजीज के बाद जो कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे बचाने के लिए हम करते हैं, तो उसको टर्शरी प्रिवेंशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो होता है, ये वो स्टेप्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो कि हम किसी भी डिजीज के एक्शन वो होते हैं विच आर टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, एंड इट स्टार्ट्स बिफोर प्री पैथोजेनेसिस स्टेज स्टार्टेड। ठीक है, अभी प्री पैथोजेनेसिस स्टेज स्टार्ट नहीं हुई है, उसके पहले ही हम उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करें। आजकल ये क्रॉनिक डिजीजेस के लिए मेनली जो है गवर्नमेंट इसको प्रोमोट कर रही है कि क्रॉनिक डिजीजेस से हम बच सकें, वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन में, कि हम पहले एजुकेट कर दें पीपल को कि हम कैसे किस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे एग्जांपल कैंसर है, कैंसर से बचने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन में हम ये कर सकते हैं, हम एक एजुकेट करें और मोटिवेट करें यंग पीपल को, टीनेजर्स को, कि वो स्मोक ना करें। शुरू से ही अगर वो स्मोक नहीं करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है कैंसर ना होने का। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाती हैं। इससे हमारा जनरल हेल्थ इंप्रूव होता है। और इस टर्म में, प्राइमरी प्रिवेंशन में भी एक टर्म और आता है पॉजिटिव हेल्थ का, जो कि पॉजिटिव हेल्थ मेनली क्या करती है कि एक इंसान की ऐसी हेल्थ हो जो कि सोशली एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ वो इंसान जी रहा है, तो वो जो हेल्थ होती है वो पॉजिटिव हेल्थ हो जाती है, उसको टर्म दिया गया है पॉजिटिव हेल्थ का। और इसी के अंदर स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस भी आते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में क्या-क्या हो जाता है, जैसे इम्यूनाइज़ेशन हम करते हैं बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड, जैसे आजकल कोविड के रिलेटेड इम्यूनाइज़ेशन हो रहे हैं, और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिसके लिए हम इम्यूनाइज़ कर देते हैं पहले से ही। डीपीटी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, जो एक बच्चे के पैदा होते ही जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग उसको बूस्ट करने के लिए जितनी भी वैक्सीन्स आ जाती हैं, वो सब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाएँगी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में। एंड यूज़ ऑफ सप्लीमेंटेड फूड, जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट है, इसका हम यूज़ करते हैं गोइटर से बचने के लिए, ये भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाएगा। कॉन्डम्स फॉर स्टडीज एंड कीमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स फॉर मलेरिया, प्लेग एंड कोविड-19। हम कोविड-19 में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसके अंदर कीमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स में हम वही सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे विटामिन सी के ज़्यादा कर दिया, लिमसी ले रहे हैं या मल्टीविटामिन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स में आ जाती हैं। और प्रोटेक्शन अगर हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से भी कर रहे हैं तो वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाता है, कि प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसे कोई डस्ट, इंडस्ट्रियल डस्ट में जा रहा है, उसको हम प्रॉपर मास्क दे दें, प्रॉपर मास्क यूज़ करने के लिए, जिससे उसके चेस्ट जो है वो अफेक्टेड ना हो। तो ये सब मिलके प्राइमरी प्रिवेंशन बताता है। इसके बेनिफिट क्या है कि ये सेफ होता है। क्यों सेफ? इस वजह से इसके अंदर यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है कि अभी तक किसी भी डिजीज़, कोई डिजीज़ स्टार्ट नहीं हुई है बॉडी में, इसलिए इसको बोला है कि ये सेफ तरीका है प्राइमरी प्रिवेंशन, और लो कॉस्ट होता है। इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये लो कॉस्ट भी होता है। एंड ये सारी चीज़ें, और इसका बेनिफिट हमें आजकल के टाइम पे, एपिडेमिक, आजकल तो पैंडेमिक चल रहा है, अगर एपिडेमिक भी हो रहा हो कोई पर्टिकुलर एरिया में, उसमें भी इसका पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करना, पब्लिक हेल्थ मेजर्स मेंटेन करना, एजुकेट करना लोगों को कि हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने कोविड-19 के टाइम पे, जैसे यूज़ ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स वेरियस टाइम्स। ये सारी चीज़ें, अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसकी एपिडेमिक के टाइम पे हम इन सारी चीज़ों को, मेजर्स को अप्लाई करें अपने अंदर, तो हम बहुत सारी डिजीज़, उस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, जिसके अंदर और क्या है, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में कि सैनिटेशन को इम्प्रूव करें, वाटर सप्लाई इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं हैंड वॉशिंग से, या फिर अदर जो मलेरिया जैसे होता है उसके इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम वेक्टर बॉर्न नहीं होने देते हैं, उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि वेक्टर बॉर्न्स ना हो। इम्यूनाइजेशन, प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ फूड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड एक्सीडेंट प्रोटेक्शन। इसके अंदर एक्सीडेंट प्रोटेक्शन में हम बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन में ये कर सकते हैं, हम जगह जगह बोर्ड्स लगा सकते हैं। जैसे स्कूल के पहले बोर्ड लगे होते हैं, गवर्नमेंट ये करती है कि स्कूल के पहले कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, तो इंसान स्लो चलता है। तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करके हम एक्सीडेंट प्रोटेक्शन से भी बच सकते हैं। क्रॉसिंग के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन वो टर्म है या फिर वो प्रिवेंशन है जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन के भी पहले आता है, कि अभी कोई भी प्री पैथोजेनेसिस स्टेज भी नहीं स्टार्ट हुई है, उसके भी पहले हम क्या कर सकते हैं, वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आ जाता है। ये एक न्यू टर्म है जो कि हम क्रॉनिक डिजीजेस को रोकने के लिए, क्रॉनिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो ये होता है कि हम वही कैंसर वाली जो मैंने बात की कि स्मोकिंग को हम एजुकेट और मोटिवेट करें यंग पॉपुलेशन को कि वो स्मोकिंग ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें जिसके अंदर प्रॉपर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड्स लें, फास्ट फूड ना लें, फैटी फूड ना लें, ऑयली फूड ना लें। ये सारी चीज़ें अगर वो अडॉप्ट कर लेंगे शुरू से ही, तो ये सारी चीज़ें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आती हैं, ताकि कोई प्री पैथोजेनेसिस स्टेज ही स्टार्ट ना हो किसी भी डिजीज से रिगार्डिंग। इसी इसी तरह अगर हम इस पे फॉलो करें तो हम बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स से भी बच सकते हैं, जैसे डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। सेकेंडरी प्रिवेंशन इसके बाद आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, उसके पहले हमने प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कर लिया, उसके बाद अगर कोई स्टेज डिजीज स्टार्ट होने लगी तो प्राइमरी प्रिवेंशन के टाइम पे भी हम डिजीज को रोक सकते हैं। अब अगर डिजीज स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद हम सेकेंडरी प्रिवेंशन पे भी, उसके बाद भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं फॉर टू डेवलप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। वो किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, डिजीज के जितने भी कोर्स होते हैं डिजीज का, फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट जो डिजीज होता है उसके बीच में हम कहीं पे भी इंटरवेंशन करके सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जा सकता है। जब अभी डिजीज एसिम्टोमेटिक हो तब भी कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इसका मेन जो थिंग है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, मेन चीज़ जो हम करते हैं वो यही करते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए डिजीज़ का, और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर सेकेंडरी प्रिवेंशन बनाता है। अर्ली डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग कर दिया, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का, कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में हम सारी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि सारी फीमेल्स को बुला के उसका मेमोग्राफी कर लें, या फिर सर्विक्स कैंसर के लिए कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ा लीडिंग कॉज हो रहा है इंडिया में आजकल, सर्विक्स कैंसर, उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि पैप स्मेयर के थ्रू हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में ही इन सबको डिटेक्ट कर लेंगे तो ये कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। लेकिन अगर वही अर्ली डायग्नोसिस ना हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो जाती हैं। इसमें स्क्रीनिंग जो है हम डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, सिंपल एग्जामिनेशन के थ्रू भी स्क्रीनिंग होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करके एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं आगे की, उससे हम बच सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन जब हम करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, उसमें हम प्राइमरी प्रिवेंशन, उस एक पर्टिकुलर इंसान को कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसको अगर हम ट्रीट कर दे रहे हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है या फिर ये जो प्रिवेंशन है, ये दोनों टर्म में आई जाती है। सेकेंडरी भी इसको बोल सकते हैं और प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन किसके लिए आ गया, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए आ गया जिसको डिजीज हो चुकी है, और प्राइमरी प्रिवेंशन उन लोगों के लिए जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो तदाबीर है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगी। इसका एक ड्रॉबैक, सेकेंडरी प्रिवेंशन का ड्रॉबैक ये है एज कंपेयर टू प्राइमरी प्रिवेंशन, कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है वो अभी डिजीज स्टार्ट नहीं हुई, कोई भी पैथोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हुई तभी हम कर रहे हैं, तो ये लेस मोर इफेक्टिव भी होता है प्राइमरी प्रिवेंशन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और लेस एक्सपेंसिव भी होता है प्राइमरी प्रिवेंशन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती हैं मेनली वो एट अ टाइम ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आती है, जैसे स्क्रीनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आएँ वो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि हम कोई डिजीज़ स्टार्ट ही ना होने दें। इसका ड्रॉबैक सेकेंडरी प्रिवेंशन का ये होता है कि डिजीज हो गया तो उसकी वजह से मेंटल टेंशन हो जाएगी, फिजिकल पेन होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, ये सारी चीज़ें उसकी ड्रॉबैक्स में आ जाते हैं। अगर वही हम प्राइमरी प्रिवेंशन में बच जाएं तो इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में हम दो चीज़ें करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन।
डिसेबिलिटी लिमिटेशन हम किसी भी तरह से करें तो वो भी टर्शरी प्रिवेंशन में आती है कि हम उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे हैं। जैसे कोई अल्सर हो गया या फिर गैंग्रीन हो गया, तो वो गैंग्रीन धीरे धीरे करके अदर पार्ट्स में फैलती चली जाती है, ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो उसको बचाने के लिए इस इस कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए हम उसका एम्पुटेशन कर देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट पे आके टर्शरी प्रिवेंशन में ही आता है कि हम ऐसी डिसेबिलिटीज़ को या फिर डेथ से इंसान को बचाएं। तो ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटी लिमिटेशन में आएंगी। जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, किसी को अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेस्ट देते हैं ताकि वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से या फिर डेथ से बच सके। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन में ये भी आएगा। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन भी हम 4 तरह से इसके रिहैब बुक्स में मेंशन किए गए हैं कि रिहैबिलिटेशन मतलब हम किसी भी तरह करके उसको जितना हो सके सारी डिफॉर्मिलिटीज़ हो गई, डिसेबिलिटीज़ भी डेवलप हो गई हैं, लेकिन उसको किस तरह हम मोस्ट ऑफ नॉर्मल की तरफ लेके आएँ ताकि वो अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू कर सके। तो उसके अंदर ये 4 रिहैब आते हैं, मेडिकल और सर्जिकल रिहैब, कि अगर कोई जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो वो डिसेबिलिटी हो गई, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, डिसेबिलिटी भी हो गई कि वो उसको पूरे फंक्शन नहीं कर पाएगा कभी भी। लेकिन हम फिर भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी जितना हो सके उतना पॉसिबल हम वापस लेके आ सकें। वोकेशन रिहैब करते हैं जिसके अंदर हम उस पर्सन को ट्रेन करते हैं और एजुकेट करते हैं कि वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे ले। और सोशल रिहैब में आता है रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के बीच में कैसे उसको फ्रेंडशिप के लिए हम उसको मोटिवेट करें, रिलेशनशिप फैमिलीज के साथ रहने के लिए ज़्यादा बोलें ताकि उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता रहे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो। जैसे कोई किसी का एम्पुटेशन, लेग एम्पुटेशन हो गया कि कोई, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था या फुटबॉल प्लेयर था, उसको अगर हम रिहैब करने के लिए हम कोशिश करें तो उसका रिहैब हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसको किसी मतलब भाग दौड़ में ना लगा के उसको कोच बना दिया जाए। कोच ऑफ फुटबॉल वो बन जाएगा तो वो अपने उस पैशन से जुड़ा हुआ भी रहेगा, उसकी एक अर्निंग रहेगी और अपनी लाइवलीहुड को भी वो मेंटेन कर सकेगा और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी जो बातें हो गई ये हमारा टर्शरी प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सारी ये मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से आ गया। और सेकंड पार्ट हमने बोला था कि सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हिफ्ज़ान सेहत जो है यूनानी में कहाँ से और कैसे आया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें तो इल्म तिब की बात करते हैं। तो इल्म तिब क्या है कि इल्म तिब जिसमें इंसान की हालत में सेहत होती है और मर्ज़ के एतबार से बहस होती है। सेहत और मर्ज़ के एतबार से बहस होती है, कंडीशन ऑफ बॉडी के बारे में बहस की जाएगी। सेहत है तो उसे कैसे बाकी रखा जाए, और सेहत नहीं है यानी मर्ज़ आ गया है तो उसको कैसे अपने उसमें इनिशियल स्टेज में वापस लेके आया जाए। तो ये तिब में ये दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं, सेहत और डिज़ीज़। अब इसमें भी फिर 2 पार्ट होते हैं इसके इल्म के, इस इल्म के। एक इल्मी तिब होता है और एक अमली तिब होता है। इल्मी तिब में सारी जो वो चीज़ें आ जाती हैं जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती हैं कि हम एनाटमी, फिजियोलॉजी या फिर यूनानी में मेन जाएँ तो उमूर तबिया, हालात बदन, असबाब, अलामात, इन सब की नॉलेज होना, दीज़ थ्योरेटिकल नॉलेज, इट ऑल कम्स अंडर इल्मी तिब। एंड अमली तिब में सारे प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाते हैं जो हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कैसे करें, किस चीज़ पे कैसे अप्लाई करें। तो इस वाले नॉलेज में अमली तिब में फिर 2 क्लासिफिकेशन किया जाता है, इल्म हिफ्ज़ सेहत और इल्मुल इलाज। इल्म हिफ्ज़ सेहत जो हमने बताया कि सेहत है तो उसे बाकी रखी जाए, ये वाला जो पार्ट है वो इल्म सेहत में आ जाता है। और अगर मर्ज़ है तो उसको वापस सेहत की तरफ लेके आया जाए, तो ये सारी चीज़ें इल्मुल इलाज में आ जाती हैं। तो इल्मुल इलाज में फिर 4 तरह से इल्मुल इलाज बेसिकली बताया गया तिब्बा ने कि 4 तरह से इसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन फर्दर की गई है कि इलाज बिल तदबीर कैसे किया जाए, इलाज बिल ग़िज़ा से कर सकते हैं, इलाज बिल तदबीर से कर सकते हैं, इलाज बिल दवा से कर सकते हैं, और लास्ट में इलाज बिल यद इस्तेमाल किया जाता है। अब इल्म हिफ्ज़ सेहत है कि सेहत को कैसे बाकी रखा जाए, इसमें 3 चीज़ें फर्दर आती हैं कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसकी सेहत कैसे बाकी रखें, हिफ्ज़ सेहत। अगर कोई मतलब प्रोन टू डिज़ीज़ है, ज़ईफ़ है कोई, तदाबीर अब्दान ज़ईफ़ा कि ज़ईफ़ है जैसे चिल्ड्रन और ओल्ड एज वगैरह आ गए, तो उसकी तदाबीर कैसे की जाए कि उसकी सेहत बाकी रहे। और एक आता है तक़द्दुम बिल हिफ्ज़ कि मतलब कोई भी बीमारी स्टार्ट हुई है तो उसको होने से पहले जो तदाबीर की जाती है कि वो बीमारी स्टार्ट ना हो, तो उसके लिए जो तदाबीर इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं हम तक़द्दुम बिल हिफ्ज़। ये 3 बेसिकली यही वाले जो 3 हैं ये यूनानी के बोल सकते हैं एक तरह से कि यूनानी पर्सपेक्टिव से ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है।
तो हमें ये जो बात हुई थी तदाबीर अब्दान ज़ईफ़ा और तक़द्दुम बिल हिफ्ज़ के बारे में जो बात हुई है, ये दोनों जो है हम तब इन दोनों में हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है कि हम कुछ स्पेशल डाइट रिकमेंड करें, रेजिमेंट्स रिकमेंड करें और कुछ ड्रग्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो हेल्दी कंप्लीट हेल्दी है उसके अंदर हमें ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस उसको उसकी तबीयत को मेंटेन करना होता है और उसी से ही इंसान और उसके कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दें तो उसी से ही इंसान बच सकता है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तकद्दुम बिल हिफ्ज़ के बारे में लोग ये कहते हैं कि सेहत के बचाव के पहले से तदाबीर करना, तो ये सारी चीज़ें तकद्दुम बिल हिफ्ज़ में आ जाती हैं। इसका डिफरेंट यूनानी फिलोसफर्स जो हैं वो क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, हिफ्ज़ सेहत के बारे में या फिर हिफ्ज़ सेहत कैसे बाकी रखी जाए इसके बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि इब्न सीना के ने अपने बुक में ये कहा है कि हमारे बदन में जो है वो रतूबत से हमारी बदन की पैदाइश जो होती है वो रतूबत से होती है। जैसे मनी हम ले लें, मनी मेल की मनी हो या फीमेल की मनी हो, दोनों रतूबत से बना होता है। तो इस रतूबत को इसी से हमारा बॉडी बनता है और इसी ये हमेशा हमारी बॉडी में प्रेज़ेंट होती है। इसको उन्होंने रतूबत ग़रीज़िया नाम दिया है। और धीरे-धीरे करके यही रतूबत ग़रीज़िया जो है वो तहलील होती रहती हैं। फ्रॉम द बर्थ एंड टिल डेथ ये तहलील होती रहती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा तहलील होती रहती है और अगर इसके साथ-साथ इन्फेक्शन हो जाए, इस तहलील के साथ-साथ, तो ये जो है ये दोनों मिल के कॉज़ बनते हैं कि डिज़ीज़ का कॉज़ बनते हैं और यही दोनों मिल के डेथ के भी कॉज़ेज़ बनते हैं। तो इब्न सीना का कहना ये है कि हम हिफ़्ज़ान सेहत से किसी की भी डेथ को रोका नहीं जा सकता, बल्कि हम उनके लाइफ़ को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर हिफ़्ज़ान सेहत के सारे तदाबीर इस्तेमाल करें तो। उन्होंने ये कहा है कि ड्राइनेस हमारी बॉडी में जैसे-जैसे इंक्रीज़ होगी, वैसे-वैसे रतूबत ग़रीज़िया कम होती जाएगी, रतूबत ग़रीज़िया कम होगी तो रतूबत मरियम आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत देर से म्यूट पे हो। एक मिनट, आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है, अच्छी आ रही है। बाकी सबको आ रही है आवाज़? आ रही है आवाज़, आ रही है। उनका होगा। हेलो, कंटिन्यू करूँ? आप कंटिन्यू रखिए, आवाज़ आ रही है, उनका इशू होगा। ठीक। इब्न सीना का यही कहना है कि जैसे-जैसे हमारी बॉडी में ड्राइनेस इंक्रीज़ होती है, रतूबत ग़रीज़ा डिक्रीज़ होती चली जाती है, रतूबत ग़रीज़ा डिक्रीज़ होती है तो रतूबत ग़रीबा यानी कि इन्फेक्शन इंक्रीज़ होता चला जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस या इन्फेक्शन होना और उसके साथ-साथ जैसे-जैसे इन्फेक्शन और रतूबत ग़रीज़ा डिक्रीज़ होना, ये दोनों मिल के कंबाइंड फॉर्म में जो है वो हरारत ग़रीज़ा जो कि हमारी बॉडी को मेन जो है एक फ्यूल की तरह काम करती है, वो ख़त्म होती चली जाती है और जैसे-जैसे ये ख़त्म होगी यही कॉज़ बनता है मिलके ये सारे कॉज़ बन जाते हैं डेथ के। मजूसी का कहना ये है कि ये जो कंटिन्यूअस इनका सेम वही चीज़ कहना चाहते हैं मजूसी भी, लेकिन इन्होंने ह्यूमन बॉडी के साथ-साथ एनिमल बॉडी को भी इंक्लूड किया है कि डीजेनरेशन और डिसइंटीग्रेशन हमारी बॉडी में हमेशा होता रहता है, वो किस वजह से ड्राइनेस की वजह से होता रहता है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन है वो 3 इन्होंने कॉज़ मेनली बताए हैं कि डीजेनरेशन किस वजह से होता है कि एक तो जो इस एहतबास गैर तबई हमारे बॉडी में रहता है उसकी वजह से, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू एयर इसकी वजह से, एक्सटर्नल कॉज लाइक एक्सट्रीम हॉट एयर और एक्सट्रीम कोल्ड एयर और सब्सटेंसेस एनीथिंग और एक्सीडेंट्स ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल कॉज में आ गए तो इन्होंने ये 3 बेसिकली सिर्फ रतूबत को यबूसत को और उसको नहीं बोला है इन्होंने, बल्कि इन्होंने 3 कॉजेज़ बताए हैं कि ये डिजेनरेशन हमारी बॉडी में क्यों होता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि एक फ़िज़िशियन का एक ये उसका अडॉप्ट कर लेना चाहिए ऐसी लाइफ़स्टाइल या ऐसी ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हम ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जिसकी वज़ह से डिसइंटीग्रेशन और डिजेनरेशन बहुत कम हो बॉडी में और हम उसके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकें। गिलानी ने कहा है इसके बारे में एक नंबर भी दिया है इन्होंने गिलानी ने कि 120 साल जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब अगर हम हिफ़्ज़ान सेहत के सारे वो फॉलो करें तो। और इसके इन्होंने 2 गारंटर कहे हैं, ज़ामिन कहे हैं कि ज़ामिन सेहत हिफ़्ज़ सेहत 2 होते हैं टू प्रिवेंट रतूबत ग़रीज़िया फ्रॉम इन्फेक्शन एंड टू डिक्रीज़ डिसोल्यूशन ऑफ रतूबत ग़रीज़िया। इन्होंने भी वही 2 चीज़ें बोली हैं, लेकिन इसको यही बोला है कि यही दोनों मिलके हिफ़्ज़ सेहत को बाकी रखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ प्रिवेंशन, 3 सोर्सेज हैं कि हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकें कि ये बदलमा तहल्लुल करके एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं बदलमा तहल्लुल जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है ऑर्गन में उसको हम बदल पैदा कर दें उसका बॉडी में। इसके बाद हम जो रतूबत प्रेजेंट प्रिवेंशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ रतूबत
जो रतूबत ड्राई होती जा रही है उसका हम प्रिजर्व करें, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे प्रिवेंशन करके हम बच सकते हैं इस डिसइंटीग्रेशन से। जालिनूस ने 2 पॉइंट ये कहा है कि हरारत और रतूबत जो है वो लाइफ के बताते हैं, कि अगर बॉडी में हरारत और रतूबत है या फिर कहीं पे भी हरारत और रतूबत है तो वो लाइफ को बताता है कि यहाँ पे लाइफ है, और बरूदत और यबूसत जो है वो डेथ को सिग्निफाई करता है। इन्होंने भी वही कहा है कि बदल मा तहल्लुल अगर होता रहेगा तो हमारी लाइफ इजीली चलती चली जाएगी विदाउट डिजीज, और हिफ्ज सेहत हमारा बाकी रहेगा। और बुखरात ने इसके अकॉर्डिंग में हिफ्ज सेहत के सिलसिले में बुखरात ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात खाने से रिलेटेड कही है, ग़िज़ा से रिलेटेड, कि इंसान को ग़िज़ा तब लेनी चाहिए जब उसे बहुत ज़्यादा भूख हो, और ग़िज़ा उस वक्त रोक देनी चाहिए जब उसके अंदर भूख अभी थोड़ी सी बाकी हो, तभी हम उस खाना रोक देना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बुखरात ने इसलिए कही है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो उससे एहतबास गैर तबई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो भी ग़िज़ा पहुंची होती है वो अच्छे से जज्ब नहीं होती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडर करके बुखरात ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इल्म हिफ्ज़ सेहत, इसमें हम बेसिकली जो है, जो ज़्यादातर लोगों को जो है कि इल्म हिफ्ज़ सेहत में वो सारी चीज़ें आती हैं जो 6 बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट करके आती हैं। तो ये बात तो सही है कि 6 बेसिक एसेंशियल को लाइफ में हम उसको इम्प्रूवमेंट करके कर सकते हैं, लेकिन उसके मेथड्स क्या होंगे या उसको कैसे अप्लाई करना है वो हम अब बात करेंगे। और इस इल्म में जो हम बात करते हैं इस चीज़ के लिए, इस इल्म के लिए 2 कुव्वा होते हैं, हमें उस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। कौन से कुआँ होते हैं? वो कुव्वत तबैया, 4 कुआँ होते हैं बेसिकली, उसमें से भी 2 कुव्वत पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हिफ्ज़ सेहत रह सके, हमारे डिज़ीज़ पैदा ना हो सके। तो एक है कुव्वत तबैया और एक है कुव्वत हैवानिया। कुव्वत तबैया का काम क्या है कि वो डिज़ॉल्व्ड अज़ा, जो डिसोल्यूशन हो रहे हैं अज़ा में, उसको उसका बदल प्रोवाइड करे, ये कुव्वत तबैया का काम है, वो ग़िज़ा से हासिल होती है। और जो डिज़ॉल्व्ड रूह है, उसका सब्स्टिट्यूट पैदा करे, ये कुव्वत हैवानिया का काम है, जो कि एयर से हासिल होती है। इसके बाद ये एक कंडीशन आती है कि कंप्लीट हेल्थ किसको बोलते हैं, हिफ्ज़ सेहत मुतलक किसको बोलते हैं? तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द टेम्परामेंट इज़ इन बैलेंस्ड स्टेट एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर सच दैट इट्स फंक्शन आर कैरीड आउट इन अ करेक्ट एंड होल मैनर। ये एक डेफिनेशन दे दी गई है कि सेहत मुतलक होता क्या है, कि एक कंप्लीट कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान कंप्लीटली हेल्दी होता है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होता है, तो उस कंडीशन को सेहत मुतलक कहते हैं। किसी भी, अब हिफ्ज़ सेहत हम किससे करेंगे? डिज़ीज़ से करेंगे। हेल्थ को वापस लाना या हेल्थ को बचाना हम डिज़ीज़ के कंपैरेटिव करेंगे। तो अब कोई हमारे बदन में हेल्थ या डिज़ीज़, इसके क्या कॉज़ होते हैं वो पढ़ना ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। तो इसके अंदर 4 मेन कॉज़ेज़ आते हैं, असबाब मादिया, असबाब फ़ाइलिया, असबाब सूरिया और असबाब तमामिया। ये चारों ही मिलके जो हेल्थ स्टेट है वो भी कॉज़ करेंगे, और इन्हीं चारों में अगर डिस्टर्बेंस होगी तो डिज़ीज़ भी कॉज़ होगी। असबाब मादिया मेन वो चीज़ें हैं जिसके अंदर डिज़ीज़ लाहक होती है, जैसे कि मतलब कोई आज़ा है या अरवा है, डिज़ीज़ इन्हीं दोनों में बेसिकली होती है, आज़ा और अरवा में। इसीलिए इसको इमीडिएट कॉज़ यानी कि करीब कॉज़ कहा गया है। और अखलात और अरकान भी इसी में आते हैं, इनको बईद कहा गया है क्योंकि ये अखलात और अरकान में एज़ सच नहीं पैदा होता है डिज़ीज़, बल्कि जब ये अरवा और आज़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उसके अंदर डिज़ीज़ कहीं पैदा होती है। इसलिए इसको बईद कॉज़ कहा गया है। तो असबाब मादिया में वो सारी चीज़ें आ गई जिसके अंदर डिज़ीज़ पैदा होगी। असबाब फ़ालिया में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो असरअंदाज होकर सेहत को कायम करते हैं। वो सारी चीज़ें असबाब फ़ालिया में होती हैं। इसके अंदर असबाब सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। असबाब सूरिया इसके अंदर 3 है कि अगर ये तीनों जो हैं वो हार्मनी में रहेंगे, बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो डिज़ीज़ नहीं होगी। वो 3 चीज़ क्या है? मिज़ाज, क़ुव्वा और तरकीब। ये तीनों असबाब सूरिया में आते हैं, फॉर्मल कॉज़ भी बोलते हैं इसको। असबाब तमामिया जिसको असबाब गाइया भी कहते हैं, इसके अंदर अफ़ाल आ जाता है। और अफ़ाल को जानने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, क़ुव्वत को जानना और रूह का जानना। ये दोनों चीज़ें अगर हमें मालूम है तो हमें बॉडी में अफ़ाल जो हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये चारों चीज़ें मेन कॉज़ हैं किसी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए या डिज़ीज़ को कॉज़ करने के लिए। इसके बाद हम ये हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो पूरे प्रेजेंटेशन का थर्ड पार्ट है कि मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द हेल्थ, कि हम कैसे कौन से मेथड्स को अप्लाई करके अपने हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको बहुत सारे अतिब्बा ने बहुत सारे तरह से बयान किया है, लेकिन एक कंपाइल फॉर्म में
कुल्लियात कानून में इब्न रुश्द ने बताया है कि हम कैसे, इन्होंने बेसिकली बताया कि इसके 4 मेथड्स होते हैं, वो हम एक-एक करके बात करेंगे उसके बारे में कि वो 4 मेथड्स कौन-कौन से हैं और उससे हम हिफ्ज़ सेहत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मोतदिल कैमूज़ ग़िज़ा। इसके अंदर सिर्फ मोतदिल कैमूज़ ग़िज़ा से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि मोतदिल कैमूज़ ग़िज़ा होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर ग़िज़ा से रिलेटेड क्वांटिटी, टाइम और कंपोज़िशन, ये तीनों चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है हिफ्ज़ के लिए। अब मिक़दार में हम इसका एग्ज़ाम्पल कैसे लें कि मिक़दार का हमें बुख़ारात का कौल ऊपर बताया है कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगे तभी खाना है और भूख बाकी रहे तो रुक देना है। तो ये जो मतलब है कि हमारा जो मिक़दार इतनी होनी चाहिए कि हमारा पेट पूरा ना भरे, 2/3 ही सिर्फ भरे, 1/3 हमेशा खाली रहे। जिसके ये मिक़दार के बारे में कहा है कि ये प्रॉपर मिक़दार ये लेनी चाहिए अगर हिफ्ज़ सेहत के लिए रखना है तो। और इसके अंदर जो ग़िज़ा का जो मोतदिल कैमूज़ ग़िज़ा है, उसको लेने के लिए इन्होंने एक चीज़ ये बयान की है कि अकॉर्डिंग टू मिज़ाज हमें ग़िज़ा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी शख्स को, किसी को भी हम कुछ भी ग़िज़ा बोल दें कि ये ग़िज़ा ले लो। नहीं, जबकि मिज़ाज उस पर्टिकुलर इंसान का मिज़ाज, शख्स का मिज़ाज और एक पर्टिकुलर जो उस टाइम पे मौसम चल रहा है, सीज़न है, उसके मिज़ाज के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को, अपने डिज़ीज़ जो अगर उसको कोई पैदा हो रही है, तो उस मिज़ाज के अकॉर्डिंग इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें ग़िज़ा उसको बतानी है कि किस तरह की ग़िज़ा, उसकी क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। क्वांटिटी हमने बता दिया कि 2/3 हमेशा खाली रहना चाहिए, क्वांटिटी में ऐसे ही लेना है। और टाइम का ये है, टाइम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ग़िज़ा में होता है कि हमें किस वक़्त ग़िज़ा लेनी है। जैसे हर वक़्त ग़िज़ा लेना सही नहीं होता। मिसाल के तौर पे समर सीज़न में अगर हम लें तो ग़िज़ा, अतिब्बा ने कहा है कि समर सीज़न में ग़िज़ा उस टाइम लेना चाहिए जब मोतदिल मिज़ाज वेदर हो, मोतदिल मिज़ाज सीज़न हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दोपहर के टाइम पे ग़िज़ा नहीं लेना है। पूरे दिन में जब भी मोतदिल हो तब लेते हैं। जैसे कि सुबह के टाइम ग़िज़ा लेना ज़्यादा अच्छा होता है और शाम के टाइम ग़िज़ा लेना अच्छा होता है। हर वक़्त ग़िज़ा लेना वो सही नहीं है। टाइम भी इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रात में बहुत ज़्यादा लेट कुछ लोग खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी गैर तबई एहतबास हो जाता है। रात में बहुत लेट खाने के लिए अतिब्बाओं ने मना किया है और हदीस में भी है कि हमें इशा के पहले-पहले खाना खा लेना चाहिए। जिसकी वजह से रात में अच्छे से हज़्म हो सके और रात में बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, क्योंकि रूह का जो है रूह जो है वो अंदरूने बदन ही होती है उस टाइम पे, रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि इससे एहतबास, गैर तबई एहतबास के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपोज़िशन से रिलेशन में हमें ये बात करनी है कि इसके अंदर ग़िज़ा के कंपोज़िशन से क्या मतलब होता है कि हम कौन-कौन सी ग़िज़ा मिला के ले रहे हैं, ये भी कंपोज़िशन में आ जाता है। और हम कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं, ये भी इसी में आ जाता है कंपोज़िशन में। तो ये अतिब्बा ने बहुत सारी चीज़ों को बयान किया है कि हमें सिरका अगर ले रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारा पानी मिलाना चाहिए। अगर मिज़ाज की ग़िज़ा ले रहे हैं तो उसके साथ किसी ठंडी चीज़ का मिलाकर नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुअतदिल चीज़ मिला के लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंपोज़िशन में आ जाती हैं। मीठा और खट्टा है, इसको मिला के साथ में नहीं खाना चाहिए, जिसकी वज़ह से गले पे असर पड़ता है। और ग़िज़ा में ये सारी चीज़ें तो हो गई, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, टाइम हो गया, कंपोज़िशन हो गया। इसके अंदर मेन चीज़ जो एक होती है, जो कि परहेज़ आता है। कि हमें कुछ ग़िज़ाओं से परहेज़ भी करना चाहिए। सिर्फ़ ये सारी चीज़ें देखने से नहीं होगा। जैसे अगर कोई मरीज़, विटिलिगो का मरीज़ आ रहा है हमारे पास, उसका मिज़ाज बारिद है, तो हम उसको ऐसी ग़िज़ा से परहेज़ करने के लिए कहेंगे। बारिद मिज़ाज होता है विटिलिगो का बेसिकली, डिज़ीज़ का। तो हम उसको बारिद ग़िज़ा लेने से हम उसको परहेज़ करने के लिए बोलेंगे। उसको बोलेंगे कि दूध मत लो, दही मत लो, ये सारी चीज़ें मत लो। तो ये भी मुअतदिल कैमूज़ ग़िज़ा या इस टॉपिक के अंडर में आ जाता है, ग़िज़ा के अंडर में आ जाता है। इसके बाद इन्होंने दूसरा मेथड क्या बयान किया है, फ़िज़लात का इस्तफ़राग। फ़िज़लात के इस्तफ़राग के बहुत सारे तरीके हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क़ै, इस्हाल, मुंज़िज, मुसिल, हिजामा, तलक, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िज़लात का इस्तफ़राग जो है, ये प्रिवेंशन में इस तरह इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम इस्तेमाल करके हर लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे बच सकते हैं डिज़ीज़ से। प्राइमरी प्रिवेंशन पे भी बचा जा सकता है फ़िज़लात के इस्तफ़राग से, सेकेंडरी पे भी, टर्शियरी पे भी। प्राइमरी पे कैसे बच सकते हैं कि अतिब्बा ने कहा है कि पूरे साल में अगर 2 बार कोई भी मुअतदिल मिज़ाज का इंसान है, उसको अगर हिफ्ज़ सेहत करनी है तो साल भर में अगर 2 बार वो इस्तफ़राग कर ले रहा है मुंज़िज मुसहल के ज़रिए, तो वो उसको डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उसका जो सेहत है वो हमेशा बाक़ी रहती है। इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन में, और इसके अंदर ये भी आ जाता है कि कुछ तिब्बा ने ये भी कहा है कि 28 साल के ऊपर, यानी कि अडल्ट एज में 28 साल हो गया, उसके बाद हर साल इस्तफ़राग करा लेना चाहिए फॉर हिफ़्ज़ान सेहत।
सेकेंडरी लेवल पे हम कब कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई एब्सेस अब हो गया, डिजीज हो गई है, एब्सेस पैदा हो गया है, तो उसको हम इस्तफराक कर दें, उसका आईएनडी सिंपल प्रोसीजर में आईएनडी कर सकते हैं उसका, तो ये भी प्रिवेंशन हो गया कि वहाँ पे बाकी जो आगे चल के वो गांठ की तरह ना बन जाए, ये सारी चीज़ों से प्रिवेंशन हो जाएगा। या फिर कब्ज़ की शिकायत अभी स्टार्ट हुई है, उसी टाइम हम मुस्किल या मुलय्यन दवा दे के उसका वो कर दें, उसका इजाला कर दे। तो और फिर टर्शरी प्रिवेंशन पे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एक इसकी मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं कि फालिज हो गया किसी शख्स को, फालिज के बाद वो आता है मर्ज लेके, एक मर्ज पैदा हो चुका है, उसकी वजह से डिसेबिलिटी पैदा हो चुकी है, उसके बाद हम फिजुलात के इस्तफराक बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि हम मसाज करके उसके उज़ू को ठीक कर सकते हैं, उसके जितना हो सके उतना रिस्टोर कर सकते हैं फंक्शन को, स्ट्रेंथन कर सकते हैं ऑर्गन को, अगर वो हमारे पास सही टाइम पे आ जाए तो विद इन 6 मंथ अगर आ जाता है तो हम बहुत हद तक उसके जो अफ़ाल हैं वो वापस लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजलात के इस्तफराग में आ जाती हैं। इसके अलावा जो थर्ड मेथड बयान किया इन्होंने वो कहा है कि हवा की इस्लाह, इसके अंदर हवा की इस्लाह एक्सटर्नली हवा की इस्लाह भी कर सकते हैं और इंटरनल जो चेस्ट कैपेसिटी लंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा के भी हम हवा का इस्लाह कर सकते हैं। तो चेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हवा ओपन एयर में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी है, डीप ब्रीदिंग, ये चेस्ट की इस्लाह हो जाएगी, चेस्ट में जो हवा जा रही है उसकी इस्लाह हो जाएगी, चेस्ट लंग की कैपेसिटी को बढ़ाती है ये। उसके बाद एक्सटर्नल हवा में अगर हम आते हैं तो एक्सटर्नल हवा की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। आजकल कोविड में भी हम देख रहे हैं कि ये जो है हवा की वजह से ही फैल रहा है, तो इसकी वजह से भी हम कर सकते हैं। तो हवा की इस्लाह अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग तरीके से हो सकता है, जैसे गर्मी है तो हम ठंड ऐसा कुछ कर दें कि ठंडी हवा आने लगे, तो जैसे एसी यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या विंटर में हम हीटर लगा के हवा की इस्लाह कर सकते हैं। रूम के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं, अगर हम ओपन एयर में हैं तब तो ठीक है, तो ओपन एयर में भी वो हवा जो माउंटेन्स के ऊपर होती है, वो हवा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। और हवा की इस्लाह अगर हम रूम में अगर हैं तो उसमें भी हम हवा की इस्लाह ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ के प्रॉपर वेंटिलेशन करें रूम की। प्रॉपर वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, अगर रूम में दिन भर में 2 एक्सचेंज ऑफ एयर हो जा रहा है तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो होती हैं, जो कि एयरबॉर्न होती हैं, एयर की वजह से फैलती हैं, वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। इंडोर प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स के अलावा जो है, इंडोर प्लांट्स तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, और इसके अलावा एक आर्टिफिशियल भी आता है, एयर प्यूरीफायर मशीन्स भी आजकल बहुत सारी आ रही हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करके हवा की इस्लाह कर सकते हैं, इंडोर हवा की इस्लाह कर सकते हैं। एक हवा की इस्लाह में एक मेन टॉपिक वबा का भी आ जाता है कि वबा के टाइम पे जो हवा में तगय्युर पैदा होते हैं उससे भी इस्लाह किया जा सकता है, कि जैसे पुराने ज़माने में अतिब्बा ने या फिर प्रॉफिट्स के ज़माने में भी जब वबा का टाइम आया था तो प्रॉफिट्स ने यही कहा था कि माउंटेन के ऊपर चले जाओ, जितने लोग माउंटेन के ऊपर गए थे वो वबा से बच गए थे। तो ये सारी चीज़ें हवा की इस्लाह में आ जाती हैं। 3 मेथड्स तो ये हो गए, मुतदिल कैमुज़ ग़िज़ा, फ़िज़लात का इस्तफ़राग, हवा की इस्लाह। चौथा जो है वो आ जाता है अवारिज़ नफ़सानिया से परहेज़, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उससे परहेज़ करना। पहले मेंटल डिसऑर्डर जो है वो हेल्थ के डेफिनेशन में नहीं ऐड किया था डब्ल्यूएचओ ने, बाद में आके वो बहुत मतलब कुछ साल पहले ही ये मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ों के साथ ऐड किया है डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ के डेफिनेशन में। मेंटल हेल्थ क्या होती है डब्ल्यूएचओ ने के अकॉर्डिंग, इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटी, can cope with the normal stress of life and can work productively and is able to make a contribution to his or her community। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन बयान की है डब्ल्यूएचओ ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि मेंटल हेल्थ किसी भी शख्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ नहीं होता तो इंसान, ठीक है सेहत रहती है लेकिन मेंटल हेल्थ की वजह से इंसान प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी भी तरह से अगर लो फील कर रहा है तो उस टाइम पे भी नहीं कर सकता है। तो इन मॉडर्न टाइम पहले भी होता था, लेकिन अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये पहले बीमारी नहीं होती थी, मेंटल इलनेस जो है वो आजकल की चीज़ें हैं कि फ़ॉरेन से आया है, ये फ़ॉरेन कल्चर है कि काउंसलर्स के पास जाना, साइकियाट्रिक के पास जाना। नहीं, जबकि ये असबाब सित्ता ज़रूरिया में भी बहुत पहले अतिब्बा ने कह दिया था कि हरकत सुकून बदनी के साथ-साथ हरकत सुकून नफ़्सानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नफ्स की इस्लाह करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले ही अतिब्बाओं ने इसका ज़िक्र कर दिया था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल-फिलहाल में ही मेंटल हेल्थ को इंक्लूड किया है।
इसके फैक्टर्स मेन क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के खराब होने के? एक तो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मेन दो फैक्टर बयान किए गए हैं कि मतलब ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ गरीबों में होता है, अमीरों में भी बहुत सारे स्ट्रेस के कॉजेज होते हैं। तो उनके स्ट्रेस, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो इंसान थोड़ी देर के लिए होता है, उसको नॉर्मली इंसान जो है कोप कर लेता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन के पहले का स्ट्रेस, वो सारे नॉर्मल स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चला जाता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो फिर सेहत को बिगाड़ने लगती हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए। आजकल जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं इससे बचने के लिए, फार्माकोथेरेपी इंसान लेते हैं, इसके लिए एक अलग साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है इसको सुधारने के लिए, जिसके अंदर हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी। ये सारे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि उसका ध्यान ही ना जाए किसी और तरफ। साइकोथेरेपी देते हैं, उससे बातें करते हैं, कंसोल करते हैं उसको उसको मोटिवेट करते हैं कि वो गैदरिंग में बैठे, अपनी फैमिली वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मेथड्स हो गए कि हम कैसे इससे परहेज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया कि इब्न रुश्द ने जो कंसाइज करके 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 मेथड्स बताए हैं, वो हो गए ये 4। अब हम बात कर सकते हैं कि दूसरी बुक्स में और अतिब्बाओं ने कि क्या-क्या बोला है मेथड्स के बारे में, कि हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये तो इब्न रुश्द की बात हो चुकी है। रब्बन तबरी ने ये कहा है कि फूड एंड ड्रिंक एंड इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट कही है रब्बन तबरी ने। इन्होंने वो मेंटल हेल्थ को कंसिडर नहीं किया है, फूड को कंसिडर किया है, ड्रिंक कंसिडर किया है एंड इवैक्यूएशन कंसिडर किया है। हवा के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो बहुत सारे अतिब्बाओं ने कुछ चीज़ें छोड़ी भी हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐड भी की हैं। तो हम इसीलिए बहुत सारी बुक्स से इसीलिए कंसिडर किया है कि किस बुक में किस तरह से किसने क्या कहा है। तो रब्बन तबरी ने फिरदौसुल हिकमत में ये कहा है कि फूड, ड्रिंक एंड इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट मैटर करने के लिए मतलब तदाबीर हम कर सकते हैं। ज़करिया राज़ी के फिर 2 अप्रोचेज़ हैं मेंटेन, मतलब हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए 2 अप्रोचेज़ ये इन्होंने बोला है, बैलेंसिंग डेली एक्टिविटी और इनिशियल स्टेज पे डिज़ीज़ का डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना। ये ज़करिया राज़ी का कांसेप्ट है। इब्न सीना का कहना है कि इन्होंने मेन फोकस जो वही किया है कि असबाब इसका ज़रूरिया पे कैसे उसको इक्विलिब्रियम पे करके हम सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। इब्न सीना ने इस अकॉर्डिंग से बयान किया है हिफ्ज़ सेहत। मजूसी ने कहा है, मजूसी का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहा है कि उन्होंने कॉमन प्रिवेंशन और ख़ास प्रिवेंशन, आम प्रिवेंशन एंड ख़ास प्रिवेंशन में उन्होंने क्लासिफाई किया है। आम प्रिवेंशन में इनका ये कहना है कि प्रिवेंशन फ्रॉम कॉमन कॉज, जैसे कि असबाब सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया में अगर बेअतदाली हो जा रही है, तो उससे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, बॉडी को उसके अंदर एतदाल पे ला के प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये कॉमन कॉज में आ जाता है। और ख़ास में है कि जैसे कि किसी का सूए मिजाज हो गया हो, मिजाज ही तब्दील हो गई हो पूरी, या फिर कोई वीक पर्सन है, तो उसको कैसे वापस लेके आया जाए सेहत पे। तो ये ख़ास के अंदर, इसके अंदर मजूसी ने कहा है कि ये ख़ास उसमें आ जाता है। शायद कबूरुद्दीन ने भी वही सारी चीज़ें कही हैं कि कैसे असबाब सित्ता ज़रूरिया को ठीक किया, मतलब ठीक करके कर सकते हैं, इलाज भी तदबीर को करके कर सकते हैं, इवैक्यूएशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कही है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ तबीयत बाय इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इन्होंने तबीयत को बहुत ज़्यादा वो दी है, तवज्जो दी है कि तबीयत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हिफ्ज़ सेहत में। बाकी सारी बातें तो वही सेम है। तबीयत क्या है? तबीयत हमारी बॉडी का एक सुप्रीम प्लानर है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको बताती है, उसको मतलब प्रोवाइड करती है हेल्दी इन्वायरमेंट, ताकि एक वो हेल्दी स्टेट बना रहे और डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट करे। ये तबीयत का काम है, इसको सुप्रीम प्लानर कहा है तिब्बा ने। और अगर यही चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो डिज़ीज़ हो जाता है, और अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो डिज़ीज़ से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो इसके अंदर रहती है, तो डिज़ीज़ नहीं होते हैं। और तबीयत को may be defined as the sum total of structural, functional, psychological character of human being। तो एक तरह से इस तरह से बोला जा रहा है। और तबीयत में एक वर्ड ये आता है, तबीयत मुदब्बराए बदन। ये मेन क्या है कि इसके अंदर तबीयत में एक ख़ास किस्म की डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये भी तबीयत का ही एक पार्ट है जिसको तबीयत मुदब्बराए बदन से जाना जाता है।
ये सारी चीज़ें, तबीयत मुतबरा बदन अगर ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है हमारा, तो बहुत सारे ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर डिजीज़ डेवलप नहीं होती हैं, हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म नहीं जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, एक ही ऑर्गेनिज्म 2 शख्स के अंदर जा रहा है, एक जो शख्स है वो बीमार पड़ जा रहा है, दूसरा शख्स जो है वो नहीं, उसको उतना असर कर रहा है। तो ये चीज़ बताती है कि इस इंसान की तबीयत मुतबरा बदन स्ट्रांग है, जिसके अंदर डिजीज़ नहीं डेवलप हुई है, और दूसरे इंसान के अंदर वीक है। आजकल के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे लोगों थोड़ा बहुत अफेक्ट होके ठीक हो गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि तबीयत मुतबरा बदन जिसकी स्ट्रांग होगी, उसको डिजीज़ कम होगी। बुखरात का एक कॉल है कि तबीयत इज़ कंसिडर एज द रियल हीलर ऑफ द बॉडी एंड द रोल ऑफ तबीब इज़ टू फैसिलिटेट दिस तबीयत। ये बुखरात ने कहा है, और ये बहुत सही बात है कि तबीब जो है वो ठीक नहीं करता है कोई भी चीज़। तबीब का काम ये है कि वो तबीयत को ठीक करे। अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो वही चीज़ जो है इंसान को डिजीज़ से बचाती है, या हेल्थ स्टेट पे वापस लेके आती है। तो ये इसी बुखरात के इस कॉल से डॉक्टर वेलफ्रेड हैं, वो भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने भी अपनी बुक में इस चीज़ का ज़िक्र किया है। इसके बाद रब्बन तबरी का कहना ये है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तबीयत जो है उसको कुव्वा से रिलेट किया है, कि कुव्वत अगर कवी है तो तबीयत सही रहेगी, तबीयत सही है तो हेल्थ स्टेट बना रहेगा। और इन्होंने जो मेन कुव्वत बयान की है कि कौन कौन से कुव्वत जो है वो मेन है, तो 3 कुव्वत इन्होंने है, कुव्वत तबिया, कुव्वत हैवानिया, कुव्वत नफ्सानिया। इन तीनों को अगर हम कवी कर दे रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन से करें, चाहे वो मतलब किसी भी तरह से करें, मेडिटेशन से करें, या किसी भी तरह से तबीयत, कुव्वत तबिया और कुव्वत हैवानिया और कुव्वत नफ्सानिया को हम कवी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर तबीयत को स्ट्रांग करती हैं, और तबीयत स्ट्रांग होगी तो डिजीज़ कम होगी। इसके अंदर बहुत सारी हम मुकव्वियात इस्तेमाल करते हैं, मुकव्विया अज़ाए रईसा आ गया, मुकव्विया बदन हो गए, मुकव्विया आसाब हो गए, मुकव्विया क़ल्ब दवाएँ हो गई। ये सारी दवाओं का भी इस्तेमाल करना अतिबाओं ने बोला है कि ये भी प्रिवेंशन में ही आता है। इसके बाद आता है इम्यून मॉड्यूलेटर्स का कंसेप्ट आता है। इम्यून मॉड्यूलेटर्स का कंसेप्ट में बहुत सारे लोग इसको इम्यून इन्हांसर से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हम इम्यून मॉड्यूलेटर्स नहीं दे सकते, लेकिन इम्यून मॉड्यूलेटर्स टर्म है, मॉड्यूलेट मतलब उसको नॉर्मल की तरफ लेके आना, बढ़ी हुई है तो उसको घटाना, घटी हुई है तो उसको बढ़ाना। तो ऐसी बहुत सारी इम्यून मॉड्यूलेटर्स हमारे यूनानी बुक्स में मिलती हैं, जो कि इम्यून मॉड्यूलेटर्स का काम करती हैं, जैसे लहसुन, कलौंजी, फिलफिल, शहद, असले सूस, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी इम्यून मॉड्यूलेटर्स की तरह काम करके इम्यूनिटी को बढ़ाती भी हैं और घटाती भी हैं। वो अंदर जाके उसके बाद होता है ये सारी चीज़ें। तो हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर देने का एक हमें ख्याल रखना ये चाहिए कि मिजाज का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देने के लिए। वो शख्स का भी मिजाज को हमें ख्याल करना चाहिए उस शख्स के, और दूसरा मौसम के लिहाज से भी हमें करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का मौसम है या बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का शख्स है, तो उसको हम बहुत गर्म जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर ना देके मोतदिल इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं, या फिर तबरीद की तरफ जो होते हैं वो वाले होते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा हार ज़ाफ़रान ना दे, दूसरा कोई दे दें, इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ तक कि थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया कि डिफरेंट बुक्स में कौन-कौन से मेथड्स बयान किए हैं डिफरेंट अतिब्बा ने, कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन। अब हम कुछ तदाबीर की बात करेंगे कि कौन सी तदाबीर हम लेके आएँ अपनी लाइफ में, कौन सी तदाबीर को हम अडॉप्ट करें अलग-अलग डिफरेंट सिचुएशन में, तो हेल्दी रहने के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू तदाबीर, अकॉर्डिंग टू सीज़न, सीज़न्स 4 सीज़न होते हैं मेनली, तो उसके अंदर स्प्रिंग सीज़न में हम कैसे-कैसे तदाबीर इस्तेमाल करें कि हमें सेहतमंद रहें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे इसके अंदर फूड के बारे में अगर हम बात करें, वही 4 पॉइंट्स हम मेनली लेंगे, फूड और फ़िज़लात का इस्तफ़राग़, हवा की इस्लाह और अवारिज़ नफ़सानिया से परहेज़ करने का। यही चारों पॉइंट्स मेनली हर एक मतलब सिचुएशन में अडॉप्ट करेंगे। तो फूड से रिलेशन में इसका ये है कि अगर मौसम रबी है तो हम स्मॉल क्वांटिटी में लें, मुतदिल मिजाज के फूड लें, और ये सीज़न बहुत अच्छा माना जाता है इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल्स के लिए। इसके मेन रीज़न ये है कि इसका मिजाज जो इस सीज़न का जो मिजाज होता है वो मुतदिल होता है, जो कि फेवर करता है इवैक्यूएशन के लिए, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है इवैक्यूएशन के बाद। और दूसरा ये कि इसके पहले जो मौसम होता है शिता का, सर्दी का मौसम जो होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी हार्मफुल मॉर्बिड मटेरियल्स जो होती हैं वो बदन के अंदर इकट्ठा हो जाती हैं सर्दी की वजह से। तो उसको भी निकालने के लिए बहुत अच्छा, उसको इवैक्यूएट करने के लिए ये बहुत अच्छा सीज़न माना जाता है। ये हम फसद, वॉमिटिंग या मुसलादिया, ये सारी चीज़ें दे के और भी बहुत सारी तदाबीर हैं उसको भी दे के कर सकते हैं।
इसके अंदर हम वो सारी तदाबीर इस्तेमाल करेंगे जो कि गर्मी को बुझाती है और मवाद के हैजान को कम करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। वो सारी चीज़ें, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो बेदिंग करना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेदिंग करें ताकि गर्मी बुझे। और ऐसी चीज़ें हमें कम करनी है जिससे हमारे बॉडी में जो है वो हरारत बढ़े। जैसे एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी में हरारत बढ़ेगी। तो हमें एक्सरसाइज़ को है बहुत मिनिमल, बहुत मतलब मुतदिल में एक्सरसाइज़ करनी होती है इस मौसम में। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर यही है कि किसी को पीना ही है, बहुत ज़्यादा आदी है अल्कोहल का, पीना ही है, तो उसको बोलना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी मिला के पिए, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है और हमें इस मौसम में उस सारी चीज़ों से बचना है जो हीट जनरेट करती हैं। क्लोथ के बारे में भी यही है कि क्लोथ ऐसा पहने जो कि लाइट हो, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा ना पहने। समर सीज़न के बारे में बात करें तो समर सीज़न में ये है कि इसका जो मिज़ाज होता है वो हार याबिस होता है समर सीज़न का। तो इसके अंदर फूड हमें जो है उसके अपोज़िट फूड लेना चाहिए। तबरीद वाले फूड लेने चाहिए, लेस क्वांटिटी में लेना चाहिए, लतीफ़ और ज़ूद हज़्म ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। और टाइम वही है, टाइम का मैंने पहले भी बताया कि अ, इसके अंदर गर्मी के सीज़न में जो टाइम होता है वो कंपैरेटिव कोल्ड टाइम होना चाहिए पूरे दिन में। उस टाइम खाना खाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं, वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, फूड पॉइज़निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर तबरीद वाली सारे नुस्खे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। आबे अनार, आबे अंगूर, खीरा, ककड़ी, जितने भी सीज़नल वो हैं वेजिटेबल्स हैं, खीरा, ककड़ी इसी सीज़न में ज़्यादा आते हैं। तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तफ़राग से बचना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी बॉडी में इस मौसम में यबूसत रहती है। अगर हम इस्तफ़राग करेंगे तो यबूसत और ड्राइनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी हमारी बॉडी में, तो इससे हमें बचना चाहिए। मुस्हिल अद्विया ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तबरीद करना चाहिए। तबरीद के जितने भी वो हैं कि फ़ैन इस्तेमाल करना, लाइट कॉटन क्लोथ्स, लाइट एकदम कपड़े एकदम लाइट पहनना, कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करना, नहाने के लिए हो चाहे पीने के लिए हो। और वो सारी चीज़ें, हीट और ड्राइनेस वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। स्लीप इसके अंदर ज़्यादा करना है, क्योंकि स्लीप की एक ये है कि स्लीप जब ज़्यादा सोते हैं हम तो हमारी बॉडी में तबरीद पैदा होती है। ये क्या बोलते हैं, रतूबत पैदा होती है, रतूबत पैदा करने वाली होती है स्लीप। और यबूसत वो अवेकफुलनेस जो है, बेदारी, वो जो है वो हमारी बॉडी में यबूसत पैदा करती है। तो इसलिए हमें बेदारी से बचना चाहिए, आराम से सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस पे आराम करना चाहिए। इसके अंदर कुछ समर हेल्थ टिप्स में आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि इसके अंदर रेगुलर मील लेना चाहिए, लाइट मील लेना चाहिए, कूल प्लेसेस पे रहना चाहिए, लाइट कपड़े पहनने चाहिए, वही सारी चीज़ें जो पहले बता दी गई हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना चाहिए हाइड्रेटेड रहने के लिए। और सन सन के डायरेक्ट सन रेज़ से डायरेक्ट बचना चाहिए, सन स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ये भी एक तदाबीर में आता है। तदाबीर ज़ीनत को बचाने के लिए, ज़ीनत को प्रोटेक्शन के लिए जो तदाबीर आती हैं, ये उसके अंदर आ जाएगा। वो हम आगे अभी और थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ सनस्क्रीन एंड लिप स्क्रीन विद एसपीएफ एंड यूज़ ऑफ आई प्रोटेक्शन। इसके बाद जो सीज़न आता है वो ऑटम सीज़न होता है। ये इसके अंदर हमें बहुत सारी, ये सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम कहा है अतिब्बा ने कि ये सबसे ख़राब मौसम होता है। इसके मिज़ाज के अकॉर्डिंग भी कहा है, क्योंकि इसका जो मिज़ाज जो होता है एनवायरनमेंट का, वो चेंज होता रहता है पूरे दिन भर में। सुबह में कुछ रहता है, दोपहर में कुछ रहता है, शाम में कुछ रहता है। सुबह और रात में सर्दी रहती है और दोपहर में कड़कती धूप या फिर गर्मी रहती है। तो हमें इन दोनों, दोपहर की गर्मी से भी बचना है और सुबह और शाम की सर्दी से भी बचना है। और फूड ऐसी लेनी है जो कि गुड ब्लड प्रोड्यूस करे, गुड ब्लड बनाता है। जैसे एक साला भेड़ बच्चे का गोश्त हो गया, भेड़ के बच्चे का, छोटा हलवान बकरी के गोश्त हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि जय्यदुल कैमूस होती हैं और अच्छा खून बनाती हैं, वो वाली चीज़ें हमें इसके अंदर ज़्यादा लेनी है। और ऐसी चीज़ें कम लेनी है जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें, और इस मौसम में इन्फेक्शन बहुत होते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। रद्दीउल कैमूल्स ग़िज़ा से परहेज़ करना है, कोल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग से, इससे भी परहेज़ करना है। यही बताया मैंने, क्योंकि मौसम हमेशा चेंज होता रहता है। इस मौसम में दिन भर में 2 मौसम की तरह से चेंज होते हैं। इस वज़ह से हमें वाटर जो है कोल्ड वाटर से बचना है। कोई भी इस्तफ़राग इंड्यूस नहीं करना है इस मौसम में, ड्राइनेस से बचना है, मॉडरेट एक्सरसाइज़ करनी है इसमें, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लो एक्सरसाइज़ भी नहीं करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज़ करनी है। और कोल्ड बाथ से बचना है।
उसके बाद इसके अंदर वही मैंने बताया कि कोल्डनेस से बचना है नाइट और मॉर्निंग के, और हॉटनेस से बचना है। इसी चीज़ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां इस वजह से पैदा होती हैं क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाती हैं इस कंटिन्यूस चेंज की वजह से, कि सुबह में दूसरा मिजाज है, दोपहर में दूसरा मिजाज है, रात में दूसरा मिजाज है, तो उस चीज़ से कोप अप नहीं कर पाती बॉडी। जैसे कि विंटर में है कि कंटिन्यूस ठंड रहती है, तो हमारी बॉडी ऐसी तदाबीर इस्तेमाल कर लेती है, हमारे मुदब्बराए जो बदन है हमारे, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हैं कि हमारे अंदर हीट जनरेट हो और गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें, और ऐसी कपड़े भी हम इस्तेमाल करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं कि गर्मी में भी इतना असर नहीं होता, लेकिन इसमें कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, इस वजह से डिजीजेस पैदा होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे बचने की तदाबीर वही है कि अच्छे अच्छे खुशबू सूंघें, नरगिस, संदल, मुश्क, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो सीज़न है, ये एक तो ख़राब है, एडल्ट्स के लिए भी ख़राब है, और स्पेशली ख़राब जो होता है वो ओल्ड एज और सर्द मिजाज वालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ये मौसम, क्योंकि इनकी बॉडी जो है इस बदलते मौसम से सही से डील नहीं कर पाती है। विंटर सीजन आ जाता है। विंटर सीजन में ये है कि ये सबसे मतलब जीआईटी से रिलेशन में अगर हम बात करें, जीआईटी फूड से रिलेटेड या हाजमे से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। इस मौसम में बहुत अच्छा जो है कुव्वत हाजमा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अबंडेंट फूड हम इसके अंदर लेंगे तो भी ज़्यादा असर नहीं करेगी। हॉट फूड लेना चाहिए, जितने भी हॉट और याबिस हॉट फूड्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जितने भी रद्दुल कैमोज ग़िज़ाएँ हैं वो सब इसके अंदर खाएंगे, सब हजम हो जाती है, किसी का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। गलीज़ ग़िज़ा ले सकते हैं, भुना गोश्त, काऊ मीट, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर आराम से ले सकते हैं। बॉडी में जो है वो नट्स वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में रिक्कत और लताफत प्रोड्यूस करती है। हालून और नट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और ऐसी फूड से परहेज़ करना है जो कि बलगम बनाते हैं। फ्लेगम वाले जितने भी फूड्स हैं वो उन सब से, बारिद मिजाज वाले जितने भी हैं उन सब से हमें प्रोटेक्ट अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को। और हॉटनेस और ड्राइनेस बॉडी में इंक्रीज करनी है। क्लोथ उसी हिसाब से, मौसम के हिसाब से मोटे कपड़े पहनने चाहिए। फायर प्लेसेस पे बैठना चाहिए ताकि हमेशा हमें वो हीट मिलती रहे। और फूड भी ऐसी खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी में जनरेट हो, हीट जनरेट हो, हॉट मिजाज वाले जितने भी होते हैं। मसाज करना चाहिए, मसाज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, और ब्लड फ्लो जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ पे हरारत बढ़ती है, तो मसाज भी इसके अंदर बहुत बेनिफिशियल होता है। एक्सरसाइज, इसके अंदर एक्सरसाइज जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब इसके अंदर फिजलात जितना इस्तफराग हो सके, पोर्स तो क्लोज होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से जो कि बहुत अच्छा होता है फिजलात के इस्तफराग के लिए। तो एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अल्कोहल का इसके अंदर बहुत अतिब्बा ने कहा है कि अल्कोहल यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे खासे अमाउंट में हीट जनरेट करती है बॉडी में। और इस बॉडी में जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ सफ़रा बहुत ज़्यादा होता है। हिद्दत वाली जितनी भी वो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ये मिज़ाज, इस मौसम का मिज़ाज सफ़रा के मिज़ाज से अपोज़िट होता है, इसलिए इसमें बहुत अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब है तदाबीर बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि रियाजत। रियाजत के ज़रिए हम कैसे तदाबीर करके कर सकते हैं, हिफ्ज़ सेहत को बाकी रख सकते हैं। तो इसके अंदर पहले हम ये देखेंगे कि रियाजत किस तरह की, दो तरह की रियाजत होती क्या है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है। रियाजत वॉलंटरी मूवमेंट्स को बोलते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट को रियाजत नहीं बोला जाता है। जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं बॉडी में, और ये चाहे कुल्ली भी हो सकते हैं और जुज़वी भी हो सकते हैं। होल बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि स्विमिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, रनिंग करते हैं, इसमें पूरा बॉडी हमारा जो है वो एक्सरसाइज करता है, तो इसको कुल्ली बोलते हैं, कुल्ली रियाजत। उसके बाद जुज़वी रियाजत भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड होता है, जैसे लंग्स की एक्सरसाइज कर लें, या वॉइस की एक्सरसाइज कर लें, या पर्टिकुलर पार्ट यानी हैंड का एक्सरसाइज करें, या फिर बाइसेप्स जैसे इंक्रीज करते हैं उसके लिए वो जुज़वी वाले हो गए। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज जुज़वी में आ जाती हैं। द बेस्ट टाइम ऑफ एक्सरसाइज कौन से होते हैं? जब फूड जो है वो स्टमक से नीचे चला जाता है, यानी कि खाने से 3 से 4 घंटे के बाद एक्सरसाइज करना वो बेस्ट टाइम होता है, एक्सरसाइज के लिए भी और दल्क के लिए भी, दोनों के लिए बेस्ट टाइम यही होता है कि फूड जो है वो स्टमक से नीचे जा चुका हो। और एक्सरसाइज बेहतर है कि ओपन एयर में किया जाए, जिसकी वजह से चेस्ट की कैपेसिटी भी बढ़ती है, चेस्ट एक्सरसाइज भी साथ साथ होती रहती है। और इसके एक मॉडरेट एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जो हैं वो कुछ बयान किए गए हैं यहाँ पे, कि इसकी वजह से जो है वो हरारत गरीजियाँ इंक्रीज होती है मॉडरेट एक्सरसाइज अगर हम करें तो। ये हेल्प करती है किस चीज़ में? इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल में फ्रॉम बॉडी, और हार्डनेस प्रोड्यूस करती है, फरहत बख्शती है बॉडी में, और लाइटनेस प्रोड्यूस करती है बॉडी में, कि बॉडी बहुत हल्का हल्का फील होता है रियाजत करने के बाद। और इसकी वजह से डाइजेशन में भी हेल्प मिलता है कि डाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, नींद अच्छी आती है,
और इसकी वजह से वही लाइटनेस इन द बॉडी भी प्रोड्यूस होती है। एक्सरसाइज जो है, जितनी भी मादी डिजीजेज होती हैं, मादे के एहतबास की वजह से जितनी भी डिजीजेज होती हैं, उसके लिए हर एक अगर एक्सरसाइज प्रॉपर हम रेगुलरली करते रहें तो उन सारी डिजीजेज से बचे रहते हैं। और जितनी भी मिजाजी डिजीजेज होती हैं उसमें से कुछ डिजीजेज से बचे रहते हैं। लेकिन मादी डिजीजेज का यह है कि सारी मादी डिजीजेज से इंसान बचा रहेगा अगर रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करता रहे ऑल ओवर द ईयर, या फिर हमेशा करता रहे। तो ये नहीं कि छोड़े और फिर करे, फिर छोड़े फिर करे, इस तरह से नहीं, हमेशा करता रहे तो सारी मादी डिजीज से वो बच सकता है। अलग अलग तरह की रियाजत होती हैं, कवी, हल्की, मोतदिल रियाजत, सारे पार्ट्स की मैंने बताई दी हैं। अलग अलग रियाजत होती है। चेस्ट एक्सरसाइज में डीप ब्रीदिंग करते हैं, वॉइस एक्सरसाइज में रीडिंग करते हैं। साम्या के लिए एक्सरसाइज वो होता है कि सूदिंग म्यूजिक को सुने। बासिरा के लिए एक्सरसाइज होता है कि स्मॉल स्मॉल लेटर्स की रीडिंग करने की कोशिश करें, स्मॉल लेटर्स को रीड करें और अच्छी अच्छी सीनरी देखें, ग्रीनरी देखें, सीनरी देखें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद एक एक टर्म हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड तिब्बा ने ये कहा है कि 2 तरह से हॉर्स राइडिंग होती है। एक तो नॉर्मल हॉर्स को मॉडरेट हॉर्स राइडिंग करें, और दूसरा एक विगरस एकदम भगाएँ दौड़े घोड़े को। तो वो दोनों चीज़ें, जो मॉडरेट हॉर्स राइडिंग होती है वो वीक पीपल के लिए बहुत अच्छा होता है, वेस्ट मटेरियल के लिए, मतलब वेस्ट मटेरियल के इवैक्यूएशन के लिए मॉडरेट हॉर्स राइडिंग। ये नहीं, रनिंग वाली नहीं। रनिंग वाली का क्या है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रतूबत करती है और एक्सरसाइज ऑफ बोथ होता है, बॉडी भी होती है और नफ्स के भी एक्सरसाइज होता है, दोनों तरह से एक्सरसाइज होते हैं। लेकिन वीक पीपल को चाहिए, जितने भी वीक हैं उनको यही चाहिए कि वो मॉडरेट हॉर्स राइडिंग करें, एक्सट्रीम वाला ना करें। अतिबा ने ये भी कहा है कि एरोप्लेन राइड और बोट राइडिंग, ये दोनों जो है वो हरकत और हैजान के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुव्वत हज़्म को बढ़ाते हैं। ये दोनों ही कुव्वत हज़्म को बढ़ाते हैं। लेकिन बोट राइडिंग में जो वॉमिटिंग होती है, सिकनेस होती है, मोशन सिकनेस, तो उस टाइम पे हमें ग़िज़ा को अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर, लेकिन हम टाइम कम होने की वजह से पूरा नहीं ले पाए। इसके बाद एक्सरसाइज का हो गया। अब वो तदाबीर हैं जो हम दलक से, जो हम तदाबीर करके करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी, अगर हम ढूंढने जाएंगे दल्क की डेफिनेशन तो वो हमें नहीं मिल पाती है। बस इतना ही बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि मालिश करना बॉडी की तेल के साथ और बिना तेल के, ये दोनों चीज़ें डेफिनेशन में आ जाती हैं और इतने डेफिनेशन पे रुक जाते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन ढूंढा तो उसके अंदर ये 2 मेन डेफिनेशन मुझे कुछ मिले हैं। इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हज़्म अखीर, जो कि इब्न रुश्द ने कही है कि जो हज़्म अखीर जो होता है उसका इवैक्यूएशन करना दल्क का काम होता है। दल्क वो होती है जो हज़्म अखीर को इवैक्यूएट करे। इसके बाद एक डेफिनेशन मुझे ये मिली, दल्क इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड विद पाम and digits by a skilled person on a body surface in variety of ways to dissolve the morbid matters and to assist the kuwa for therapeutic and preventive purpose। ये मुझे एक रिसर्च पेपर से मिला है जो कि डॉक्टर तनवीर ने लिखा है, उससे मुझे ये मिला है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि दल्क से होती हैं, जिसके लिए दल्क हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो दल्क, इसके अंदर वो चीज़ें आ गई कि हम इसके अंदर पाम और डिजिट्स का यूज़ करते हैं, किसी स्किल्ड पर्सन के थ्रू हम यूज़ करते हैं। कोई ऐसे मतलब पर्सन को जिसको नॉलेज ना हो बॉडी की, वो नहीं, जब बल्कि स्किल्ड पर्सन यूज़ करता है इस प्रोसेस को। इसके बाद बॉडी सरफेस पे हम डिफरेंट तरीके से डीप स्टिमुलेशन के थ्रू या फिर सुपरफिशियल स्टिमुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ वेज हो गए इसके अंदर, जो कि असिस्ट करती है किसको, कुव्वा को असिस्ट करती है, थेराप्यूटिक वे में भी और प्रिवेंटिव पर्पज से भी। तो ये एक वो दल्क की डेफिनेशन जो डॉक्टर तनवीर ने दी है, ये बहुत मुझे, उसमें सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और अकॉर्डिंग टू इसके बाद हम टाइप्स ऑफ दलक की बात करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं। तो कैफियत के अकॉर्डिंग में 3 दल्क के टाइप्स होते हैं, सुल्ब, लय्यन और मोतदिल। सुल्ब जो होता है वो पोर्स को हार्ड करता है, सख्त करता है, कसीफ करता है। और लय्यन जो होता है वो पोर्स को लूज करता है और मसल पोर्स को ओपन करता है और मसल्स को लूज करता है। लय्यन जो होता है, और मोतदिल होता है वो इन बिटवीन कैफियत पैदा करता है। तो ये कैफियत के लिहाज से हो गई। सुल्ब बहुत ज़्यादा गहरा डीप स्टिमुलेशन के साथ, लय्यन सुपरफिशियल स्टिमुलेशन के साथ, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। इसके बाद कमियत के लिहाज से इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किया है, 3 टाइप्स बताए, कसीर, कलील और मोतदिल। कसीर के, अगर हम कसीर के अंदर जाएँ कि कसीर टाइप इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। कलील की वजह से जो है कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता कलील अगर हम करें तो, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, उसके अलावा कोई भी तहलील वगैरह कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए कलील भी सिग्निफिकेंट नहीं है और कसीर भी नहीं करना
चाहिए। इसलिए इन दोनों के दरमियानी जो मोतदिल वाला जो होता है वो हमें इख्तियार करना चाहिए कमियत के लिहाज से, जिसकी वजह से बल्क ऑफ मसल्स जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा 3 मुरक्कब टाइप्स इन्होंने बयान किया है इब्न रुश्द ने कि सुल्ब मोतदिल, लय्यन मोतदिल और मोतदिल मोतदिल। इनका कहना है सुल्ब मोतदिल जो दल्क होता है इसकी वजह से स्केलेटल मसल्स में बल्क पड़ता है, स्केलेटल मसल्स जितने होते हैं। लय्यन मोतदिल अगर हम करें तो उसकी वजह से स्मूथ मसल्स के इंक्रीज होती है, बल्क जो है वो इंक्रीज होती है। और मोतदिल मोतदिल करें तो दोनों को मॉडरेटली इंक्रीज करती है, दोनों टाइप के मसल्स को। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें से अंदर से दूसरी बुक्स से मैंने लिया है इसके अंदर कि दल्क के ये फिर 4 टाइप्स और होते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स में। दलक खशिन, दलक अमलस, दलक इस्तिदाद और दलक इस्तरदाद। दलक खशिन ये है कि रफ क्लोथ से किया जाए जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत जल्दी उस पार्ट पे बढ़ता है। दलक अमलस वो करते हैं कि सॉफ्ट क्लोथ से हम मालिश करते हैं जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट में जो है ब्लड का स्लोली इंक्रीमेंट होता है। इस्तेदाद और इस्तरदाद ये 2 तरह के दल्क होते हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। दलक इस्तेदाद जो होता है वो एक्सरसाइज से पहले करते हैं ताकि वो हीट को प्रोड्यूस करे और स्लो से पहले पहले हम इनिशियली स्टेज पे स्लो करेंगे फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ होते जाएंगे। उसके बाद हमने रियाजत की, उसके बाद जब हम दलक करेंगे तो वो जो दलक होगी वो दलक इस्तरदाद कहलाती है। दलक इस्तरदाद में क्या होते हैं कि ये हार्ड मसाज से स्टार्ट करते हैं और फिर स्लो की तरफ जाते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? मेनली उस मॉर्बिड सब्सटेंस को इवैक्यूएट करती है जो कि इसके एक्सरसाइज करने के बाद जो है बीनीथ द स्किन रह जाता है, उसको इवैक्यूएट करने के लिए दलक इस्तिरदाद बहुत बेनिफिशियल होता है। अब ड्यूरेशन के बारे में है कि ड्यूरेशन कितनी देर दल्क करना चाहिए, तो ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसके अंदर मिजाज ऑफ पर्सन आता है, मिजाज ऑफ ऑयल आता है, मिजाज ऑफ डिजीज होता है, ऑर्गन के ऊपर, कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड डिजीज के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन होल मैनर जब हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो एक पेपर से में मतलब ये मेंशन किया था कि रिलैक्सेशन के लिए अगर पर्पज से हम हेल्दी पर्सन को रिलैक्सेशन के पर्पज से कर रहे हैं तो 30 to 40 मिनट्स काफ़ी होते हैं। और अगर वही चीज़ पेन के लिए हम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं मसाज। और फिजिकली वीक पर्सन के लिए कर रहे हैं तो पहले हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर आखिर में एकदम हार्ड एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि 15 से 20 मिनट स्लोली करेंगे और 30 to 35 मिनट्स हार्ड पे जाएंगे। और अगर हैबिचुअल पर्सन है कि उसको दल्क का हैबिचुअल है कि वो हमेशा कराता है, तो ऐसे पर्सन के लिए 20 to 30 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद ओल्ड पीपल के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है, मोर देन 1 आवर करो तो भी उनके लिए कम पड़ता है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है उनके पूरे बॉडी में। इसके बाद वही हमने बताया कि 3 से 4 मिनट के बाद 3 से 4 घंटे के बाद दलक का जो टाइम है वो होता है जब फूड जो है वो स्टमक से नीचे उतर जाता है, पहले भी बताया था। इसके बाद डिफरेंट मौसम के एतबार से भी टाइम का वो होता है, फ़र्क पड़ता है। जैसे मौसम रबी और ख़रीफ में जो है वो हमें शाम में करना चाहिए, मौसम सैफ में जो है वो सुबह में करना चाहिए, मौसम शिता में आफ्टरनून में करना चाहिए। वही जो इन्वायरमेंट को देख के, सराउंडिंग का इन्वायरमेंट क्या है। एम की बात हो ही चुकी है पहले, और उसके बाद जो एम की अगर हम कंपाइल फॉर्म में बात करें तो यही सारी चीज़ें हैं कि वो फिजिकल फंक्शन को डेवलप करती है, मेंटेन करती है, रिलीव करती है पेन में, या फिर डिसफंक्शन जो होता है उसको प्रिवेंट करती है, रिलैक्सेशन ऑफ टाइट एंड टेंस मसल, और इम्प्रूव सर्कुलेशन, रिड्यूस ओवरऑल स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। मसाज थेरेपी इज ऑल्सो इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ पेन, क्रॉनिक और अक्यूट, इन स्ट्रेस रिडक्शन। ये सारी चीज़ें वही बता गई हैं कि रिलैक्सेशन। कुछ पिक्चर्स इकट्ठा किए हैं जिसके अंदर वही है कि स्टिमुलेशन, डीप मसल स्टिमुलेशन करना है। उसके बाद इसके अंदर एक ये चीज़ होती है कि हम एरोमेटिक सब्सटेंस का अगर हम इस्तेमाल करें तो एक अच्छा माहौल पैदा हो जाता है दल्क के लिए, क्योंकि दल्क में बहुत टाइम लगता है, 30 to 40 मिनट्स बहुत लंबा टाइम होता है। तो उसके लिए माइंड के रिलैक्सेशन के लिए भी हम कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम्माम आता है, तदबीर बाय हम्माम। हम्माम के अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम्माम उसको अच्छा बोला है जो कि पुराना हो, ब्रॉड हो और स्वीट हो। इसके अंदर 3 तरह के कमरे होते हैं हम्माम में। पहला जो कमरा होता है वो कोल्ड और मॉइस्ट होता है, सेकंड रूम जो होता है वो हॉट एंड मॉइस्ट होता है, थर्ड रूम जो होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है। इसके अंदर हम्माम का जो मेन कमरा होता है वो हॉट एंड ड्राई वाला मेन कमरा होता है, लेकिन हम
डायरेक्ट हॉट एंड ड्राई में जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो गैर तबी तौर पे पैदा हो जाती हैं। इसीलिए ये 3 कमरे अलग-अलग बनाए जाते हैं हम्माम में कि पहले मुतदिल मिज़ाज में रखा जाता है, फिर कोल्ड मॉइस्ट मिज़ाज में रखा जाता है थोड़ी देर, उसके बाद फिर हॉट मॉइस्ट मिज़ाज में, उसके बाद ड्राई मिज़ाज में जाते हैं, हॉट एंड ड्राई मिज़ाज में, ताकि हमारी बॉडी पे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हों वो कम पड़ें। और इसके अंदर मिज़ाज ऑफ पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ड्राई मिज़ाज का पेशेंट है तो उसको वेट हमाम कराएँ, वेट मिज़ाज का पेशेंट है तो उसको ड्राई हमाम में ज़्यादा देर तक रखें। इसके बाद ये एक हमाम की फ़ोटो मुझे मिली थी तो वो मैंने लगा दिया कि इसके अंदर रूम का टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी पैरामीटर्स होते हैं कि हम उसको अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तफरुक इत्तिसाल में हमें अवॉइड करना चाहिए, तफरुक इत्तिसाल और सेप्टिक फ़ीवर दोनों में हमें हम्माम को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर खाने के जस्ट बाद हम्माम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सुद्दा पैदा करता है, और अगर ऐसे सिचुएशन में हम्माम कराना भी है तो सिकंजबीन का इस्तेमाल करना चाहिए हम्माम के बाद। समटाइम्स फूड इज़ गिवन आफ्टर हम्माम, हम्माम के बाद भी दिया जा सकता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है हम्माम के बाद देना। कोल्ड बाथ इज सजेस्टेड फॉर दोज हु विद हॉट टेम्परामेंट। वही मैंने बताया कि कोल्ड वाटर बाथ हमें जनरली सबको सजेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि जो कि यंग हों और हॉट टेम्परामेंट हो उनका, और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, और समर का टाइम हो, तभी हम कोल्ड बाथ को करते हैं। नहीं तो हर जगह हमने यही देखा है कि मोतदिल मिजाज वाटर का इस्तेमाल करते हैं बेदिंग के लिए, या नहीं तो फिर वो ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करते हैं बेदिंग के लिए। इसके बाद बेदिंग विद सल्फर वाटर बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। इसकी वजह से पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल होता है, जो कि स्किन के बीनीथ में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रूम में हेल्प करता है। हेल्प्स इन फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर भी हेल्प करता है। हंगर एंड प्रिपेयर बॉडी फॉर फूड। इसीलिए हमें खाने से पहले हमाम करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, रियाज़त के बाद और खाने से पहले। हमाम प्रोड्यूसेस कोल्डनेस इन द बॉडी, बिज़ात भी पैदा करती है कि हम कोल्ड वाटर इस्तेमाल करें तो वो भी, उससे भी कोल्डनेस प्रोड्यूस होगी, और इसकी वजह से पोर्स ओपन होते हैं और वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, उसकी वजह से भी कोल्डनेस प्रोड्यूस होती है। तो बिल अर्ज भी प्रोड्यूस करती है और बिज़ात भी प्रोड्यूस करती है। इसके बाद ये सॉफ्टनेस, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हमाम जो है वो सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करती है, वेटनेस एंड कोल्डनेस, ये तीनों प्रोड्यूस करती है। ग़िज़ा की बात करें तो तदाबीर ऑफ ग़िज़ा ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, अलग हम इसको करना पड़ेगा इस टॉपिक से, तब जाके हम इसके सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। बस इसके अंदर ये है कि ग़िज़ा की इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी तहल्लुल हुआ रहता है बदन में, जिस अज़ा का भी तहल्लुल हुआ रहता है उसका बदल फराहम करना ग़िज़ा का मेन, तो हमें उसी हिसाब से ग़िज़ा लेनी चाहिए, कैफ़ियत के हिसाब से ग़िज़ा लेनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर मिज़ाज कैसा है उस पर्सन का, उस हिसाब से लेना चाहिए। जैसे हार मिज़ाज है तो बारिद मिज़ाज की ग़िज़ा लेना ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर इसके 3 बेसिक टाइप्स हैं ग़िज़ा के जो बयान किया जाता है। एक तो ग़िज़ाए लतीफ़ जो कि लतीफ़ ब्लड प्रोड्यूस करती है, ग़िज़ाए कसीफ़ जो कि कसीफ़ ब्लड प्रोड्यूस करती है, और ग़िज़ाए मुअतदिल जो विस्कोसिटी के उसमें विस्कोसिटी में ना ज़्यादा थिन होती है ना ज़्यादा थिक होती है। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि इस टॉपिक से अलग हो जाएगा फिर अगर हम उसको डिस्कस करने जाएंगे तो। इसके बाद तदाबीर बाय ड्रिंकिंग आता है। ड्रिंकिंग में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, वाटर और अल्कोहल से तदाबीर जितनी भी होती हैं। इसके अंदर अतिब्बा ने अलग-अलग पानी के बारे में बताया कि कैसा पानी पीना चाहिए। रनिंग वाटर पीना चाहिए, अगर रिवर से पी रहे हैं तो गुड होना चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है इनके अंदर। और एक चीज़ इन्होंने ये बताई है कि हमें किस टाइम अवॉइड करना चाहिए पानी पीना। तो आफ्टर हैवी वर्क या निहार मुँह, फ़ौरन उठे हैं और हमने ठंडा पानी पी लिया, उस टाइम मिज़ाज हमारा दूसरे नींद से उठने के टाइम पे बहुत अलग मिज़ाज होता है, तो उस टाइम पे हमें पानी पीना, कोल्ड पानी पीना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज़ के बाद अवॉइड करना चाहिए, कवी मुस्हिल और हमाम के बाद अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ अवॉइड के लिए बताए हैं इन्होंने कि इस टाइम अवॉइड करना चाहिए अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखना है तो। अल्कोहल से रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्कोहल में बस इतना ही यहाँ पे बताना ज़्यादा सही रहेगा कि अल्कोहल को सीज़न के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि समर सीज़न में बिल्कुल चाहे तो बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करें अल्कोहल का, और विंटर में कर सकते हैं आराम से क्योंकि ये हीट जनरेट करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो इस टॉपिक से अलग हो जाएगा। तदाबीर बाय स्लीप एंड अवेकनेस, नौम व यकज़ा। इसके अंदर ये है कि स्लीप जो है वो हमारी बॉडी में रतूबत पैदा करती है,
और वेकफुलनेस जो है वो ड्राइनेस पैदा करती है। तो इसको इसी हिसाब से इस्तेमाल करना है, जहाँ पे जिस हिसाब से ज़रूरत हो उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि स्लीप को बढ़ा सकते हैं, स्लीप को कम कर सकते हैं। अगर हमें यबूसत पैदा करनी है तो स्लीप को कम कर दें, अगर रतूबत पैदा करनी है तो स्लीप को बढ़ा दें। इसी तरह से जैसे मौसम में भी हमने इसका बयान किया था। एंड आफ्टर ईटिंग मॉडरेट स्लीप बहुत अच्छा माना जाता है। वेकफुलनेस को कभी भी किसी भी अतिब्बा ने नहीं कहा है कि वेकफुलनेस किसी भी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। तो हमें स्लीप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बेदारी से बचना चाहिए जितना हो सके उतना। अगर हम क्वांटिटी जो है स्लीप की बढ़ा देते हैं, वो यही चीज़ है कि हमारी बॉडी में हरारत ग़रीज़िया को लो कर देती है, बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ा देंगे तो, और लूजनेस ऑफ बॉडी प्रोड्यूस करती है, और अगर हम बहुत कम कर देंगे तो ड्राइनेस और डिसोल्यूशन ऑफ हरारत ग़रीज़िया करेगी। तो हमें स्लीप भी मॉडरेटली ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी टाइम को है कम भी नहीं करना चाहिए। तदाबीर इन व्यू ऑफ हरकत सुकून और नफसानी, ये हमने एक तो पीछे भी बयान किया था, उसके अंदर जब मेथड्स बयान किए थे तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर मेनली ये है कि हरकत सुकून और नफसानी, इसके अंदर हम हरकत की बात करते हैं, रूह और ब्लड दोनों की, जो कि हमारे बदन में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होती रहती है, रूह और ब्लड दोनों साथ में ही। तो इसका एक एग्जांपल में ये आता है कि कभी कभी रूह जो होती है वो बाहर की तरफ सडन होती है, तो जैसे एंगर में होता है, और कभी कभी जो होती है वो ग्रेजुअली होती है, जैसे हैप्पीनेस में होता है, फियर में होता है कि बहुत अंदर की तरफ एकदम से सारे जो रूह और ब्लड है वो अंदर की तरफ खिंच जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। फियर के टाइम पे चेहरा और स्किन वगैरह सब जर्द पड़ जाते हैं। सैडनेस के टाइम पे जो है, जब सैड होता है इंसान तो वो ग्रेजुअली इनसाइड जाती है, उसके अंदर भी इंसान पेल पड़ जाता है, लेकिन वो ग्रेजुअल मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट जो होता है, अगर इसी में ही अगर चेंज हो जाए ये मूवमेंट, बेअतदाल पे हो जाए, तो इसकी वजह से डेथ भी कॉज कर सकती है। जैसे एक्सट्रीम खुशी किसी को मिल जाए उस टाइम पे भी डेथ हो सकता है, और एक्सट्रीम सैडनेस में भी इंसान चला जाए उस टाइम भी डेथ हो सकती है। स्पेशल तदाबीर में, ये सारी तदाबीर तो हो गई एक्सरसाइज दल्क वगैरह। अब स्पेशल तदाबीर वो है कि बॉडी में कैसी बॉडी है तो उसका तदाबीर कैसा होना चाहिए। जैसे मुतदिल बॉडी है तो उसका मुतदिल हिसाब से होना चाहिए, कि इसके अंदर हमें ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और हमाम में ही चेंजेस ला के ही चेंज कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न चाइल्ड है, इसके अंदर मुतदिल मिजाज में न्यू बॉर्न से लेके ओल्ड एज तक सबका अलग अलग बयान किया गया है। तो न्यू बॉर्न में भी उसके मिजाज के अकॉर्डिंग मिल्क देना चाहिए, उसके मिजाज के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को रखना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर से उसको बेदिंग कराना चाहिए। टॉडलर्स में हमें एक सीक्वेंस बताया है कि ये सीक्वेंस अगर वो फॉलो करे उसी टाइम से ही, तो उसकी आदत हो जाएगी। तो ये क्या है कि अगर सो के जब उठता है बच्चा तो उस टाइम पे उसको मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी कि खेलने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसको मालिश करें, मसाज करें, देन उसको नहलाएं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको खाने के लिए दें। तो अगर ये लाइफस्टाइल उसी टाइम से अडॉप्ट कर लेगा इंसान, तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए। एडल्टहुड में बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर वही सारी जो चीज़ें ऊपर बयान कर दी हैं वही सारी चीज़ें आएंगी, कि प्रॉपर स्लीप लेना है 6 से 8 घंटे, फूड जो होता है वो लतीफ़ लेना है, मॉडरेट एक्सरसाइज हमेशा करते रहना है। इस्तफराग का अगर ये है कि ईज़िली टॉलरेट कर सके तो उसको इस्तफराग कराते रहना चाहिए। अतिबा ने कहा है कि 28 साल के बाद जो है इहतबास हर साल करा सकते हैं। और ये भी कहा है फूड और बेदिंग से रिलेटेड, ये कहा है कि अगर इंसान दिन भर में 3 टाइम्स जो है वो फूड इनटेक करना चाहिए 2 दिन में, और 3 टाइम्स जो है वो नहाना चाहिए 2 दिन में। ये अतिबा का एज एडल्ट के ऊपर अगर हम करें तो ये प्रोसीजर जो है ये अडॉप्ट करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, 3 टाइम्स फूड इनटेक इन 2 डेज। बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तदाबीर भी चेंज होते जाएंगे। जैसे 45 ईयर से ज़्यादा हैं तो हम उनको बहुत ही कम एक्सरसाइज करने के लिए बोले, वॉक करने के लिए सिर्फ बोले, फूड उनका कम कर दें, लेस क्वांटिटी कर दें, फ्रीक्वेंट कर दें। इसके बाद मुकव्वी ग़िज़ा दें उनको। मेडिसिन से भी अगर हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है इस स्टेज में तो मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। मुलय्यन उनको दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है ओल्ड एज में आके, तो लाइट मुलय्यन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो बारिद मिजाज का नहीं है तो उसको हम मिल्क भी दे सकते हैं, लेकिन मिल्क जनरली ओल्ड एज में आके मिजाज बारिद हो ही जाता है, तो उनको ज़्यादा मिल्क एडवाइस नहीं करना चाहिए ज़्यादा। 3 टाइम्स बेदिंग का है, इनको ज़्यादा ज़्यादा बेद करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अब गैर मुतदिल मिजाज का भी अलग अलग है, कि अगर सुए मिजाज हार है तो उसके हिसाब से उसकी तदाबीर करेंगे कि हम उसके अंदर बरूदत पैदा करें किसी भी तरह, सारे तदाबीर वही इस्तेमाल करेंगे। इस्तफराग भी इसके अंदर कर सकते हैं।
इसके बाद सफ़रा का इवैक्यूएशन करना, इसके अंदर ज़्यादा वो होता है, इस अफराग में भी सफ़रा के इवैक्यूएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सफ़रा की वजह से ही मिजाज जो है वो हारे और याबिस होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग होता है। इस वजह से इसके इवैक्यूएशन में जितना हो सके उतना करना चाहिए और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि बारिद मिजाज होती हैं। सूए मिजाज हार रतब में जो है वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर हार्ड मसाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फूड दे सकते हैं 2 टू 3 टाइम्स, बारिद याबिस मिजाज का फूड दें। इसके बाद बेदिंग कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं, मुस्हिल अद्विया इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट इवैक्यूएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट कर सकते हैं, जैसे हेड के इवैक्यूएशन के लिए स्नीजिंग, गार्गल करना गले के लिए, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आ जाती हैं मिजाज हार रतब में। सूए मिजाज बारिद की बात करें तो इसके अंदर अगर सिर्फ बारिद मिजाज है और कोई इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी मुनफाइला कैफियत नहीं जुड़ी हुई है, तो इसके लिए हम सिर्फ वार्म करेंगे बॉडी को, एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, बेदिंग और फूड पे ध्यान देंगे। अगर बारिद के साथ रतब जुड़ गया है तो उसके हिसाब से हम हॉट और ड्राइनेस प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, चाहे वो किसी भी मीन्स से हों। ऊपर जितने भी तदाबीर बयान किए उन सब का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉडी में हॉटनेस और ड्राइनेस प्रोड्यूस करें। बारिद याबिस अगर मिजाज है तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर सौदा का मतलब गलबा होता है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि हॉट और वेट प्रोड्यूस करें, हॉट और वेटनेस प्रोड्यूस करें। स्लीप को बढ़ा दें, सौदा का इवैक्यूएशन करें, हार रतब वाली जितनी भी मिजाज की चीज़ें हैं, ग़िज़ा हो चाहे वो जितनी भी तदाबीर हो, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। एक ये बात कही जाती है कि यबूसत और रतूबत जो कि मुनफाइला कैफियत होती है, मुनफाइला और फाइला कैफियत दो तरह की होती हैं। तो फाइला कैफियत में हरारत और बरूदत आ जाता है। अगर हरारत और बरूदत में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू यबूसत और रतूबत। इसमें अगर कैफियत मुनफाइला में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करती है। और वीकनेस जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो उसके कॉजेज़ कुछ बयान किए गए हैं यहाँ पे कि हरारत और यबूसत बढ़ेगी तो वीकनेस बढ़ेगा, वीकनेस ऑफ क़ुव्वत जाज़िबा होगा तो वीकनेस बढ़ेगी, उसके बाद कोल्डनेस इंक्रीमेंट इन क़ुव्वत हाज़िमा होगा तो भी बढ़ेगी, जिसके लिए नबीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसकी इस्लाह के लिए। तो कंडीशन एक ये होती है, बर्थ से इंसान एक मिजाज मोतदिल का होता है और एक बर्थ से गैर मोतदिल का होता है। तो जो बर्थ से मिजाज जिसका मोतदिल होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो इंक्रीमेंट ऑफ ह्यूमर्स की वजह से होती हैं। फासिद नहीं होते हैं इसके अंदर मवाद, मवाद बढ़ने मतलब ह्यूमर्स के बढ़ने की वजह से जितनी भी होती हैं डिजीजेस वो वाली होती हैं अगर बर्थ के टाइम पे मोतदिल मिजाज का है तो। जिसके अंदर सिर्फ वेनिसेक्शन कर दिया तो वो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ज़ैद ग़िज़ा दे दी तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और गैर मोतदिल मिजाज होता है बर्थ के टाइम पे, तो इनके में जो डिजीजेस होती हैं उन लोगों में मॉर्बिड ह्यूमर्स की वजह से डिजीजेस होती हैं। तो उसके लिए जिस ह्यूमर का मॉर्बिडिटी हुआ है या जिस ह्यूमर्स का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उस ह्यूमर के अकॉर्डिंग मुंजिज मुस्हिल का प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद ट्रैवलर्स के लिए कुछ तदाबीर अलग से बयान की गई हैं कि हॉट अगर गर्मी के टाइम पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए उसको जो है वो हॉट ऑयल नहीं, ठंड में अगर ट्रैवल कर रहा है विंटर सीजन में तो उसको हॉट ऑयल और ओवर द बॉडी मसाज करना चाहिए, बेद हॉट वाटर में नहाना चाहिए, फर्मेंटेड ब्रेड लेना चाहिए और शराब का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। और अगर समर सीजन में इसी तरह कर रहा है तो उसके लिए भी उसी हिसाब से तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, जितने भी ठंडी तदाबीर हैं वो सब इस्तेमाल करें, बेदिंग करे अच्छे से और बेदिंग भी उसको वहाँ करे जहाँ पे रनिंग वाटर हो या फिर कोल्ड वाटर हो वहाँ पे, और कोई सी कोल्ड मिजाज के ऑयल से मालिश करे, रोगन गुल और रोगन बनफशा से। मरतूब ग़िज़ाओं का खाना, वो इसके अंदर एक ये चीज़ है कि जो एम्प्टी स्टमक ऐसे लोगों को जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे सुबह के वक्त अगर सुबह से बेदारी हुए हैं फ़ौरन और उस टाइम उनको प्यास लग रही है तो उस टाइम फ़ौरन उनको प्यास नहीं पीना चाहिए, जिसकी वजह से हरारत गरीज़िया बढ़ जाती है। और अगर फिर भी प्यास लग रही है तो हमें सिप बाय सिप बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हरारत गरीज़िया कमज़ोर ना हो, चाहे वो नींद में रात में नींद से उठे हों या सुबह में नींद से उठे हों। सोनात जो होते हैं वो बोलते हैं टोनिसिटी एंड अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। इसके अतिपन ने 6 टाइप्स बयान किए हैं, समीन, कसीफ और मुतदिल और मुतहसिफ, मुस्तहसिफ और मुतखलखल और मुतदिल। इन तीनों के इन लोगों में कैसी-कैसी तदाबीर इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बताया गया है कुछ कि मुतदिल जो होता है, जो इन बिटवीन होता है समीन और कसीफ के, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मानी जाती है, सबसे बेहतर बॉडी मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ईज़िली ये सिक नहीं होते हैं, क्योंकि हरारत गरीज़िया बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हर एक आज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मुतदिल मिजाज होता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों को बीमारी बहुत जल्दी नहीं होती है।
और जो समीन लोग होते हैं इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर हरारत ग़रीज़िया क़ुव्वत जो होती है वो कम हो जाती है, क़ुव्वत के प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हरारत ग़रीज़िया कम होती है इन लोगों के अंदर। इनके अंदर हमेशा लाइफ़स्टाइल इनकी शॉर्ट होती है, इसके बाद फीलिंग ऑफ बोझ और गिरानी का फ़ील हमेशा रहता है इन लोगों के अंदर। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो कौन-सी तदाबीर इस्तेमाल करना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज़ करना चाहिए बिफ़ोर मील। जब भी खाने जाएँ तो थोड़ा-सा पहले एक्सरसाइज़ कर लें, उसके बाद खाना खाएँ और थोड़ा खाना खाएँ, ईट लेस क्वांटिटी, ठीक है? फाका करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऐसे में। नाइट्रेट और सल्फर वाटर से ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और एक सीक्वेंस इन्होंने अतिब्बा ने बयान किया है कि पहले हम कवी मसाज करें विद रोगन कुश्त और उसके बाद हमाम करें फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, हर याबिस वाले कमरे में ज़्यादा देर तक रखें। हमाम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड आफ्टर 1 आवर ईट फूड। 1 घंटे के बाद, वहाँ से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद लेस ग़िज़ाइयत वाली फूड को करें जिससे हमें ग़िज़ाइयत कम मिले और क्वांटिटी ज़्यादा हो और क्वालिटी में कम हो उसका। इसके अंदर एग्जाम्पल में ये बोला है कि मोटी रोटी खानी चाहिए चोकर वाले आटे के साथ, बथुआ पालक का साग खाना चाहिए, हॉट ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, जितने भी तरह के हॉट एंड ड्राई फ्रूट हों, चाहे वो गरम मसाले हों, चाहे वो और चीज़ें हों, मीट हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। चिकनी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। स्लीप जो है वो कम कर देनी चाहिए। बताया है कि स्लीप जो है वो बदन में यबूसत पैदा करती है और मोटे लोगों में बरूदत और रतूबत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बोला है तिब्बा ने कि स्लीप को कम कर देना चाहिए और रफ सरफेस पे स्लीप करना चाहिए। इसके बाद इस्तफ़राग़ जो है वो इवैक्यूएशन ऑफ बलगम जो है मुसिल अदविया से करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मुंज़िज और मुसिल से बलगम का इस्तफ़राग़ करना। इसके बाद जितनी भी ड्राइनेस वाली तदबीर है, इसके बाद कैटेगराइज़ किया गया है, कुछ उसूल तिब बयान किए हैं कि तक़लील ग़िज़ा करें, रियाज़त कसीरा करें, इसहाल और इदरार का इस्तेमाल करें। है कि बैलेंस डाइट, वही सारी चीज़ें फिर आती हैं इसके अंदर कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ का। ज़करिया राज़ी और इब्न सीना का कॉल ये है कि सामान्य मुफ़रत जो होते हैं उसको करेक्शन के लिए क्या करना है कि करेक्शन ऑफ सूए मिजाज बारिद करना है। चाहे इलाज विद ज़िद जितने भी इसके मतलब मिजाज सूए मिजाज बारिद है तो उसको हम हार मिजाज की दवाएँ देंगे, हार मिजाज की ग़िज़ाएँ देंगे, दवाएँ देंगे, ये सारी चीज़ें। एलिमिनेशन ऑफ एक्जिस्टिंग कॉज़ करें, इसके बाद मादे के खिल्त बलगम जो है उसका इवैक्यूएशन करें मुंज़िज मुसल से। बल्की फूड ऐसे लोगों को ज़्यादा दें कि मतलब जिसके बल्क में ज़्यादा हो और वो बल्क ज़्यादा होने की वजह से अमा से फिसलती चली जाती है। अमा को कम टाइम मिलता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए और वो फिसलती चली जाती है जिसकी वजह से फैट का जो अक्यूमुलेशन हुआ रहता है बॉडी में उसको ब्रेक डाउन होने के चांसेस मिलते हैं। कि इंसान का पेट भी भर जाता है और उसको इतनी न्यूट्रिशन भी नहीं मिलती है जितनी की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से फैट का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वहाँ पे ये चीज़ें हेल्प करती हैं। ट्रीटमेंट इसकी वही है, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल दवा से करेंगे। द इलाज बिल दवा में भी वो सारी चीज़ें जो दाफ़े शहमीन होते हैं, वो ज़ंजीबिल, कलौंजी, रेवंचिनी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इलाज बिल ग़िज़ा में भी वही करेंगे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसी ग़िज़ा देंगे। इलाज बिल तदबीर में बहुत सारी मुसिल, मुंज़िज ये सारी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल करें। थिन बॉडी में है, थिन बॉडी भी अच्छी बॉडी नहीं मानी जाती है। इनके अंदर यबूसत का गलबा होता है, डिज़ीज़ बहुत जल्दी हो सकती है इनके अंदर और ये दे कैन नॉट टॉलरेट हॉट और विंटर सीजन बोथ, ठीक है? दोनों नहीं टॉलरेट कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर फैट होता ही नहीं है। सर्दी से बचने के लिए हमारी बॉडी में फैट का होना ज़रूरी है, तो वो नहीं होता है तो ये बहुत अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते हैं, जो भी सीज़न एक्सट्रीम सीज़न्स होती हैं उनमें। इनके लिए मुसिल अदविया से परहेज़ करना है। यबूसत है तो इनको टीबी और लंग एब्सेस बहुत जल्दी हो सकता है, तो उससे यबूसत से परहेज़ करना है कि हम उसको रतूबत की तरफ उसको मिज़ाज को लेके आएँ। इसके बाद ये जो है एक टर्म इन्होंने कहा है कि ये बहुत ईज़िली हंगर को टॉलरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट पीपल, क्योंकि फैट पीपल में तहलील बहुत ज़्यादा होती है। तहलील ग़िज़ा जल्दी होगी तो भूख भी उतनी जल्दी लग जाएगी, लेकिन इन लोगों को आदत होती है भूख को, मतलब वो तहलील इन लोगों में ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये ईज़िली टॉलरेट कर सकते हैं। रेस्ट ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा हरकत वगैरह नहीं करनी चाहिए। हरारत ग़रीज़िया को बढ़ाने के लिए माइल्ड एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, मसाज कर सकते हैं, सख्त मसाज करना चाहिए इसके अंदर, ताकि वो वॉलंटरी जो मसल्स हैं उसका इंक्रीमेंट हो। और ग़िज़ा अच्छी और लतीफ़ ग़िज़ा खानी चाहिए। 2 टू 3 मील्स, अवॉइड स्ट्रेस, ब्रीदिंग और इनके अंदर जो सीक्वेंस बयान किया है तिब्बा ने, वो ऐसे बयान किया है कि पहले हार्ड मसाज करें बॉडी पे, फिर मॉडरेट एक्सरसाइज़ करें, मॉडरेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज़ करें, हमाम लें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं लेना, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद लाइट मसाज करें और उसके बाद इनको फूड दें। तो इससे इनके अंदर मोटापा इंड्यूस होता है, मोटे होते चले जाते हैं। फिर धीरे-धीरे जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं बॉडी के अंदर, जितने मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, फैट की रिक्वायरमेंट होती है, उसका इंक्रीमेंट होने लगता है।
अगर कोई एक ये चीज है कि एक तो पूरा बॉडी ही थिन है, दूसरा ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट थिन होता है, तो उसके अंदर जो थिन होता है वो किस वजह से होता है, दो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी टाइट चीज के बांधने की वजह से हो या फिर कट जाने की वजह से हो। तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर पार्ट जो थिन हो जाते हैं, उसके लिए एक सीक्वेंस बयान किया है कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले मुतदिल मिजाज करें विद ऑयल। एग्जाम्पल इसका दिया है रोगन बनफशा। उसके बाद उसके ऊपर हॉट या फिर ल्यूक वार्म वाटर जो है उसको पोर करें, जब तक वहाँ पे उसको टपकाएं वहाँ पे, जब तक वो पार्ट रेड ना हो जाए। उसके बाद उसको चमेली के तेल से मसाज करें और उसके बाद उसके अंदर तिला करें जुफ्त से। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट थिन है तो। लूज बॉडी के ये मुतदिल जो बदन होता है, इसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मुतदिल, इसके बीच में मुतखलखल और हार्ड और लूज बॉडी में जो बिटवीन का होता है वो भी अच्छा बॉडी माना जाता है, लेकिन बहुत उतना अच्छा नहीं जो पिछले वाला मुतदिल था। तो इसके अंदर जो शॉर्ट डिजीजेस होती हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। मुतखलखल बॉडी जो होता है वो तहलील फिजला जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर ग़िज़ा से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जज्ब भी जल्दी हो जाता है, इवैक्यूएशन भी अच्छा होता है। लेकिन ऐसी बॉडी जो होता है वो ईजिली अफेक्ट होती है एक्सट्रीम क्लाइमेट से या एक्सटर्नल फैक्टर से, बहुत ईजिली अफेक्टेड हो जाती है। और इनके अंदर जो डिजीज होता है वो एहतबास की वजह से कम डिजीजेज होती हैं और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिजीजेज ज़्यादा होती हैं मुतखलखल बॉडी में। और जो वही चीज़ हार्ड बॉडी में अगर देखी जाए तो इसके अंदर जो डिजीजेज होती हैं वो उस वजह से ज़्यादा होती हैं कि एहतबास की वजह से ज़्यादा होती हैं और इनकला मवाद की वजह से होती हैं। क्यों? क्योंकि ठोस बॉडी में जो होती है पोर्स, स्किन एकदम स्ट्रेच्ड होता है तो पोर्स क्लोज्ड होते हैं, तो इस्तफराग हो नहीं पाता अच्छे से। तहलील ग़िज़ा भी कम होती है, तहलील फ़िज़ला भी कम होती है, सारी चीज़ें कम होती हैं इनके अंदर। यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है क्योंकि स्वेटिंग इनके अंदर कम होती है। इसके बाद ये इनको अमराज़े ख़िल्त के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। ये फूड इनको लतीफ़ और रतब ग़िज़ा की देनी चाहिए, लेस क्वांटिटी देना चाहिए। मोर प्रोन टू स्किन डिजीजेज ड्यू टू इम्तला और गलीज खिल्त, स्किन डिजीजेज भी ज़्यादा होते हैं और इम्तलाए मवाद से की वजह से या एहतबास की वजह से जितनी भी डिजीजेज हैं वो भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती हैं। लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेट से इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे लूज बॉडी में था कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट से इनको फ़र्क पड़ रहा था, वैसे इनके साथ अपोजिट होता है। ऐसे लोगों की तदाबीर है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ये वो ट्रैवलर्स नहीं है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ पे फिर बसें। ये वो ट्रैवलर्स हैं जो एक जगह से एक्सट्रीम हॉट से निकल के एक्सट्रीम कोल्ड में जाते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड से निकल के एक्सट्रीम हॉट में जाते हैं। तो इनकी जो मिजाज का है, वेदर का जो मिजाज है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इनको ऐसे इनके लिए तदाबीर करना चाहिए कि कोई एक तदाबीर इस्तेमाल कर लेनी, अडॉप्ट कर लेना चाहिए कोई एक तदबीर। जैसे कि बेदिंग है, तो बेदिंग में हम कोल्ड वाटर से बेदिंग करने के अपने आप को खुद से बुकरात मजूसी ने इसके अंदर बयान किया है कि एक कोई कबीला उन्होंने देखा था जिसके अंदर बचपने से ही उनको इस बात की आदत डला दी जाती है कि वो कोल्ड वाटर से बात करे, चाहे वो कोई भी सीजन हो। तो ऐसी ही कोई एक सिंगल तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उसको अगर कहीं जाए तो उसको डिफ़िकल्टी पैदा ना हो उस आदत को चेंज करने के लिए। इसलिए ऐसी वाली तदबीर। और उसके बाद एक्सरसाइज में है, अगर उसको एक्सरसाइज करने की आदत है तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बेदिंग का वही मैंने बताया कि जैसे बेदिंग है वैसे ही उसके बाद एक्सरसाइज वाली जो बात है, ईटिंग वाली जो जो रिलेशन है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फॉलो करना है। फूड से रिलेशन में ये है कि बेतरतीब ग़िज़ा इनको देनी चाहिए। मतलब अगर बारिद मिजाज का हमेशा नहीं देना चाहिए कि बारिद मिजाज के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से सिर्फ बारिद मिजाज की ग़िज़ा खा रहा है तो बारिद मिजाज की ही ग़िज़ा खाए, नहीं, बल्कि इसको हर तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए, चेंज कर कर के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि इसके बाद जो जिस सीज़न में जाएगा उसका मिजाज कैसा है। तो अगर उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरह की आदत लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और स्लीप का ये है कि ऑलवेज चेंज, स्लीप का ये है कि चेंज करना से करते रहना चाहिए अपने स्लीप टाइम को। ऐसे लोगों को जिनको ऐसी आदत है ट्रैवलिंग की, इसके बाद जो है जैसे कि इसके अंदर वो वाली सारी चीज़ें आती हैं जिन नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने भी नाइट ड्यूटी करते हैं उनको एतबास के भी चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उनको अपने भी हमेशा स्लीप चेंज करते रहना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल वही है कि ट्रैवलर्स में इसके अंदर हम पायलट का एग्जांपल दे सकते हैं, पायलट का या फिर एयर होस्टेस वगैरह जो होते हैं उन लोगों का एग्जांपल दे सकते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जिसका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और हाँ, इन लोगों को हमेशा इस्तफराग से के लिए तैयार रहना चाहिए, फसाद मुसल और वॉमिटिंग वगैरह से तैयार रहना चाहिए इससे इस्तफराग के लिए। लेकिन अगर उनको एक्सरसाइज की, हमेशा एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनको हैबिट है एक्सरसाइज की, तो इस्तफराग की नीड नहीं होती उतनी। इसके बाद जीनत के लिए ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है अलग से। अगर
तैयार करें तो इसके अंदर ज़ीनत में बालों की तदाबीर अलग से बयान की गई हैं कि बालों के लिए स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्या करें, ड्राई है तो उसके लिए क्या करें, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो उसके लिए क्या करें। फिर फेस के भी उसके लिए बयान किया है कि स्किन टोन को कैसे कर सकते हैं, स्किन टोन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, स्पॉट्स है तो उसको कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कभी और डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। तदाबीर एक टर्म इसके अंदर और आता है, तदाबीर अजाला मर्ज, जो कि इसी का हिफ्ज़ान सेहत का ही पार्ट है। ये तब आता है जबकि डिजीज कहीं है, मतलब प्रीडिस्पोज है बॉडी डिजीज के, लेकिन अभी सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, तो उस टाइम जो हम तदाबीर इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है इसके अंदर आता है तदाबीर अजाला मर्ज। और इसके अंदर ये वही सारी तदाबीर इस्तेमाल करते हैं जो कि उस डिजीज के ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ सिम्टम्स आए हैं, सारे सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन उसको वहीं पे प्रिवेंट करना तो इजाला मर्ज में आ जाता है। और इसके अंदर वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका वन ऑफ द मोस्ट प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है कि आया हो जाए बॉडी में या चेंज इन एयर हो जाए। आया बोलते हैं फटीग को, फटीग पैदा होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारी होने की बीमारियां जो होती हैं, बॉडी वीक हो जाती है, प्रोन टू गेट डिजीज हो जाता है। आया 3 तरह के अतिब्बा ने बयान किया है, कुरूही, तमद्दुदी और वर्मी। कुरूही जो होता है वो अखलात हारा की वजह से होता है, जो कि इनसाइड बॉडी जनरेट होती है, और तमद्दुदी जो होता है वो कसरत खून की वजह से होता है। और आया वर्मी बोथ, दोनों की वजह से, अखलात हारा और कसरत खून दोनों की वजह से होता है, जिसकी वजह से डायमेंशन भी चेंज हो जाती है आज़ा की। इसके ट्रीटमेंट में हम अगर उमूमी ट्रीटमेंट की बात करें तो मिजाज मादी की वजह से सारी हो रही हैं, तो इसके अंदर हम मिजाज का हाला करेंगे, इस्तफराक करेंगे, रेस्ट देंगे पार्ट को। कुरूही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुरूह पैदा कर रहा है तो ये ऐसे अखलात से पैदा होता है जो कि अखलात लज़ा होते हैं, चुभन पैदा करने वाली जो भी अखलात होते हैं, जिसके अंदर सफ़रा आता है, सौदा आता है, बलगम माले आता है, बलगम खाम, ये सारी चीज़ें मिलके ऐसी ऐसी ये सारी खिलतें हैं जो कि चुभन पैदा करती हैं, जो कि आय कुरूही का सबब बनती हैं। और ये मेनली 3 जगहों पे हो सकता है, स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, मसल्स एंड बीन, कहीं पे भी हो सकता है। और जहाँ पे होता है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, अजाला मर्ज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। आया वर्मी और तमद्दुदी में है कि वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फसद बहुत ज़रूरी होता है इस तफराक के लिए, ताकि जितने भी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है वो निकल जाए एक तरह से। और फसद हम कब कैसे करते हैं कि अगर हैवीनेस इन चेस्ट है तो फसद बासलिक की फसद करते हैं, हैवीनेस इन हेड है तो कैफाल की फसद करना बेनिफिशियल होता है, और हैवीनेस बोथ है, चेस्ट और हेड बोथ में है तो अकहल का बेनिफिशियल होता है, फसद ऑफ अकहल, मीडियल क्यूबाइटल वेन। और चेंज इन एयर 2 तरह से आ सकते हैं। चेंज इन एयर कैफियत के एतबार से चेंज आ सकता है, और प्रेजेंस ऑफ ताफुन के हिसाब से भी चेंज आ सकता है। दोनों में से कोई भी चेंज आए, दोनों ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अमराज वबाइया भी इसी में आ जाता है, एंड ये सबको असर नहीं होता। अमराज वबाइया जब भी आता है वबा, तो उसको सारे हर बॉडी में डिफेक्ट पैदा नहीं करता, हर बॉडी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही तबीयत जिसकी स्ट्रांग होती है उसको असर नहीं करेगा, जिसकी वीक होती है उसी को असर करता है। कॉमन प्रिवेंशन में यही है कि ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दें, टू प्रोटेक्ट बॉडी में के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करना है, ताकि अच्छे से फ्लो बना रहे बॉडी के अंदर। और बेस्ट प्रिवेंशन मेजर्स अकॉर्डिंग टू अखलात प्रोड्यूसेस इन द डिफरेंट सीजन में अलग अलग अखलात पैदा होते हैं, उसके हिसाब से इस्तफराक करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन है एयर में तो उसके लिए इस्तफराग आम करना चाहिए, और बारिद याबिस ग़िज़ाएँ देनी चाहिए, क्योंकि वो माने वबा होती हैं, जैसे कि खुश्क और कुंदुर वगैरह। इसके बाद एक वबा के टाइम पे मैंने बयान किया कि तिर्याक कबीर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो कि 4 रत्ती से 3.5 माशा तक दे सकते हैं, और इसके बाद 9 घंटे तक हम उनको खाने के लिए मना करना चाहिए, ताकि ये हज़्म उज़वी तक पहुँच जाए ये दवा, उसके बाद खाना खाना चाहिए। गिले अरमनी, गिले मखतूम सिरका के साथ मिला के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एक नुस्खा ये है जिसके बारे में अतिब्बा ने कहा है कि जिसने भी ये इस्तेमाल किया है वबा से महफूज रहा है। तो इस नुस्खे में अतिब्बा ये बयान करते हैं कि सिब्र लेना है 1 हिस्सा, ज़ाफ़रान 2 हिस्सा, मुरमुकी 1 हिस्सा, बारीक इसको करके, और 12 खैरात इसको लेना है अल्कोहल में मिक्स करके। तो ये इसके बारे में इसकी इम्पोर्टेंस यहीं पे इन्होंने खुद ही कह दी है कि जिसने भी ये इस्तेमाल किया है वो वबा से महफूज रहा है। समर के टाइम पे वही माउंटेन्स के ऊपर चले जाना चाहिए, पहले ही ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। फ्रूट हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो कि ऐसा खून बनाए जो कि इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। हमें मीट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मीट खुद में ही इन्फेक्शन को
प्रोन, इन्फेक्शन प्रोन होता है। फिश को अवॉइड करना चाहिए, सिकंजबीन ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और सिकंजबीन भी ऐसा जो कि तुर्श हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ऐसे टाइम पे, ऐसे मौसम में मुलय्यन दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और मुहाफ़िज़ सेहत हों, और ऐसी मुलय्यन दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जो मुहाफ़िज़ सेहत भी हों। जैसे जिसके अंदर आ जाता है इमली, रेवन चिले, गुले बनफ़शा, हिलाला जात, अमलतास, तुरंजबीन, लबलाब, आब अनार वग़ैरह। इसके बाद एक एक मेन टॉपिक जो रह गया है वो है तदाबीर व इवैक्यूएशन, यानी इस्तफ़राग़ के थ्रू जो तदाबीर करते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, इंशाल्लाह उस टाइम डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं आ पाई हैं, अभी भी बहुत लेंदी हो गया है। ये सारी चीज़ें भी आती हैं तो और भी लेंदी हो जाता, जिसके अंदर तदाबीर ऑफ ओल्ड एज अलग से बयान किया गया है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये अलग से। प्रेग्नेंट फीमेल, न्यूनेट्स, टॉडलर, एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, इन सब के अलग-अलग तदाबीर बयान की गई हैं। वबा के भी अलग हैं, ज़ीनत का भी अलग ही है। तो वो सब बाद में डिस्कस किया जाएगा कभी और, अगर प्रेज़ेंटेशन में मुझे कभी कोई टॉपिक मिला तो डिस्कस किया जाएगा। रेफरेंसेस ये हैं। थैंक यू सो मच। यहीं पे ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हैं।